चुन्नू यादव पूछो। हेलो। हाँ बोल हेलो। भाई। हाँ बोल भाई। हाँ सर, बोल रहे हैं कि मैं ओनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका हर वीडियो मैंने हर आपका आते सुनते हैं। वो कोई अच्छा स्टॉक कोई आपके अभी सजेशन हो तो बता सकते हैं सर। ठीक है, और कुछ बोलना है भाई? नहीं सर, और कुछ नहीं, ओनली इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, और कुछ नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगेन अनदर वन। नहीं नहीं, ले लो ना, जिसको जो बोलना है। और किसी को पूछना है? कि सुनने के बाद पूछना है। यस। टुडेज hot topic, raid on Polycap. It was a full-fledged raid. Now, I will explain you a few basics. First is an inquiry, income tax inquiry, income tax questions. What happened with Apne Hero Moto was inquiry, routine. ये किया वो किया क्या हुआ वो सब पूछते थे. Second level is search. Search happens on some suspicion or some cross verification or various other things. So that's a search. Raid. Raid meaning you have done something wrong. They have the proof and they come to your doors. Now I was raided twice, and searches I don't know how many of them. But one thing I am sure, any raid cannot happen without any inquiry, any investigation. My phone was tapped for 2 months, and thereafter they came in for a raid. Similarly, they put surveillance, and what you see in movies is nothing. The tools they have to detect your mail, location, whatnot, what you can't think of, they do it. I have a very low no. Some of them are super duper, they are non-corrupt, and they take things to logical conclusion. Mr. Prakash Kotak tweeted कि शाम ठीक हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में. ये that's all bullshit. एक बार आपके वहाँ देखा है तो पिछले 7 साल का ये असेसमेंट ओपन होता है. तो बहुत वो ठुकाई होती है. ये मेरे वहाँ रेड हुआ वो 2013 में लास्ट हुआ था और एक बहुत आगे आया था. 2013 का 2021 में खत्म हुआ मैटर. तो मेरे हिसाब से ये जो रेड है उनका काफी सर्वेलेंस हुआ होगा, बाद में जाके रेड गिरता है. ये ऐसे ही नहीं गिरा देते हैं रेड. Lot of legwork is done, lot of information is there, and thereafter they put on the raid. Now, Polycap, it is a pure khoka with a genuine business.
हेलो सॉरी, ये पॉलीकैब एक खोखा है। ये जब इश्यू आया 300 या 400 रुपये में इश्यू आया था, उसको बना दिया 5,500-6,000। मजे की बात है, इश्यू आया 12-13% FI के पास है, वो थोड़ा बहुत DI के पास है, और बाकी का बोलते हैं पब्लिक। वास्तव में ऑलमोस्ट ऑल द इक्विटी इज विथ हिम, और प्रमोटर का ऑफिशियली 65% है। 80,000 करोड़ में 65% उनका है ऑफिशियली। ये FI रूट में सब होता है, उनका ही माल होता है। तो ये ये पॉलीकैब के साथ हुआ, ऐसा बहुत सारा कंपनी से 100% होएगा। और आप लोग मुझे अब्यूज करते हो, ये बोलते हो, यार मेरा क्या है, जो समझ में आता है कि ये बराबर नहीं है वो आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरा पॉलीकैब शॉर्ट है या लॉन्ग है या कुछ है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना पिछवाड़ा बचा लो, अब बच सके तो। आज US में नाइकी 10%, 12% डाउन है। फिर वो क्लोजिंग आवर्स में टेंसेंट हांगकांग में 16% गया, 16%। वो 2008 का हाईएस्ट है। बट इधर टेक IT शेयर्स ऊपर गए। अभी ठीक है यार, निफ्टी बचाना है ले, बट देर इज नो ब्लडी वैल्यू इन इट, नो वैल्यू। ओहा हो हमें ले लोगे। और एक बात बताता हूँ, आई डोंट नो, आई कैन परसीव डेंजर। I used to perceive danger at 15,000, 20,000, 22,000. But I get a strong feeling. Now, the joker in the pack will be the government. Some of the authorities is going to issue a statement that markets are overheated. Or to that, if I take back in time, I think in 2008 or so, Mr. R.H. Patil, who was the NSE chairman, uh, gave a statement. Then in 2016 or so, Mr. Subramaniam, who was economic advisor, he gave, and after that, budget and all that. So it will come. The government cannot afford such a roaring bull market when things are not so good, because I don't know whether it was 2004 also. Yeah, India shining, stock market up, everything up. But again, I being Sharad Shah started talking to people on the ground. They're really not happy. So I had a cell call. And in election, BJP lost. Uh, uh, third day, I got a letter from SEBI. Please come. That you had shorted heavily and whatnot. So that's besides the point.
Something untoward will happen if the government doesn't control this. Because I have 1,000 crores and you have 2 lakhs, you are unhappy at me. Just an example. Like this, people in the know will take some action. I might be wrong. Okay, ये तो पागल है, मंदी वाला है. मैं मंदी वाला नहीं है बेसिकली. मैं बहुत तेजी वाला है. मेरे अंग अंग में तेजी भरा है, लेकिन जब सौदा करता हूँ वो दिमाग में नहीं लाता हूँ. और एक दूसरा बात है, मैं ये आगे का एक्सप्रेस में सुन रहा था, लोग क्या क्या बोलते, वॉल्यूम देखते न, ये देखते न, ये देखते. अरे ऐसे तो वो ट्रेडिंग होता है क्या? जब तक आप फंडामेंटल गेम नहीं खेलोगे तब तक आपको बाजार में सक्सेस नहीं मिलेगा. हाँ ठीक है, बुल रन आ गए, आप कमा लोगे, पर जब भी नॉर्मल मार्केट हो जाएगा, अर्निंग विल बी वेरी डिफिकल्ट. So try and learn some fundamental issues, fundamental things. Now about polycap, 65% with promoters, 12-13% with FIs. So, and you can see the in trading also that is very less volume. पूरा इक्विटी उसके पास है. ये ऐसा, see, there is a game. I I have a company, I have a reasonable business. Then I come out with a public issue. उसमें से एंकर एंड वो सब एंकर को देता हूँ, ये सब आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजी. और पब्लिक में 8-10% का इशू आता है. इशू आने के बाद में slowly I start mopping up all the shares. Almost सब शेयर आ जाते हैं. Then I start rigging and take the price wherever I want. Now tell me one thing, a cable making company, how it can be 80,000 crores? That's nonsense, sheer nonsense. And in 2010 or 11, I don't know which year, there was a company called Sterling Biotech. It used to make gelatin. So one of my friends was talking about it. So just I saw the market cap. It was 3,500 crores. I had a friend in this industry. So I asked him, how much is the total market of gelatin? So he's saying 2,000. Oh, very good. 2,000 is the real market. And the market cap of one player is 3,500. Great. More investigation. Huge volumes. I participated. He would take the price up, and in the closing he will sell. Then it got included in FNO. Price was 185, and on the day of expiry it went up to 205. Volume of 2 crores. वो सब लोग वॉल्यूम वॉल्यूम बोलते हैं ना, उसके लिए बोलता हूँ. वॉल्यूम ऑफ 2 crores and delivery zero delivery. So the point being, ऐसा सब खेला होता है बाजार में. Look, scamsters will scam you in the garb of promoter or operator or whatever, but you will have to safeguard yourself. You can attend any space,
they will tell you thousands or hundreds of strips to buy, and I also listen to them. Okay, but here you understand what is the truth. So I think if this will not open your eyes, this Dixon, ये सब ऐसा ही डिक्सन का प्रमोटर दो बार डिफॉल्टर हो चुका है. तुम नाचता है डिक्सन के पीछे. ऐसा क्या तुम लोग क्या क्यों देते हो पे? देव ना अच्छा प्रमोटर का कंपनी में शेयर में वो ले ना. ये क्या चाल आंड्रू पांड्रू ये लिख के देता हूँ. आने वाले वक्त में अभी मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूँ कि अगले महीने की, अगला साल की, 10 साल, ये 20-30 रुपया हो जाएगा. ये सुजलोन हो जाएगा. खैर, I will take some break. Chirag, on to you. Right, sir. So, sir, you may not recall, I think about 5 or 6 weeks back, I think it was the finance minister or somebody who said that, markets are overheated or words to that effect. Where it was said that, we shouldn't expect more gains or something like that. Some words like that. It was our budget. No. This is before that announcement. Even before that, the budget thing came just 2 weeks back. This thing that I'm talking about came about maybe 6 weeks back, 6 or 8 weeks back. I don't remember exactly, but it was there. I recall distinctly. Why should the finance minister comment on the state of the market, or that the market is overheated? So it's been said. And अगर आप देखेंगे तो if you see recent things that have happened in the market, saying that telling people to stay away from FNO, options trading, all of that has been said. Now every broker flashes that message because the SEBI has said it. Enough research report. This is not happening by accident. This is happening because the government is warning of it. So, I mean, if those who want to see it are seeing it, those who don't want to see it are continuing. No, people who take loans on credit card are playing the markets. No, not just that, sir. I mean, from whatever I've got to know, I mean, I was speaking to somebody at NSE also, coincidentally. Coincidentally, he's also a Patnaik. And so he was saying that there's a huge volume of options, this thing coming from, Mufassal towns and rural areas. So, I mean, there is a transfer of wealth that's happening. I mean, from the poorest parts of the country to smarter. Chirag, this thing always happens. Nothing new. In one form or the other, the wealth is transferred from your pocket to my pocket. Yeah. So, I mean, it's there. I mean, these things are happening. I know somebody in the brokerage also, one of the brokers. So Chirag, if I think I had tweeted 20 days ago कि पोलीकैब में कपला है जी रॉ मटेरियल में. जी. So it was evident here कि this action would have been initiated. Right. It's way ahead. We've seen the story everywhere. That story is being told, and as somebody who's been around, I have not been an active participant in the market till very recently. I mean, I must have bought in the previous bull run in 2006-07. At that time, I remember big stories. We've discussed this on the space also before. The names like EduComp and all. EduComp incidentally is racing again, has been for a while. And if you recall, about 2.5 months, 3 months ago, I had mentioned here that EduComp has risen from the dead, and sure enough, it's racing. And Unitech also, again, it's racing. I was about to mention it. I made 8 3x rupees. on it. 8 rupees.
क्या करें सर, 1.5 रुपए से 8 रुपए हो गया. Anyway, so Unitech will do well, sir. I mean, there is something. Once that resolution happens, something will happen out of it, I suppose. But what is Educomp? Nothing. Why is it flying? God knows. Stuff like that. And I'm not sure why people think this time it will be different. The anchors change, but the stories are the same. The tone is the same. I remember Udayan Mukherjee, talking up the market when I think Sensex reached 30,000. I think this was 10, 12 years back, and he said, "Oh yeah, see, we are beating Dow Jones, something like that." I mean, that was the kind of number somewhere like that. I mean, he acknowledged that it was chalk and cheese, but still, that euphoria is the same. If you hear the anchors today, I mean, I don't watch on a regular basis. I see only clips that come up on Twitter, and it's the same. The tone is the same. Irrational exuberance. We will change the world, whatever it is. I participate in some of these investor groups, as in WhatsApp groups. Somebody mentioned, Cochin Shipyard, G Ship, and Standard, all of these things. So I asked how many bays there are. I mean, I've asked this here also on your space. Nobody knows. I mean, your revenue is limited by the number of bays you have. So, I mean, what's the point of having an order book if you can't execute? So yeah. Good you brought this up. Orders. So it's flashed on the TV, right? Mm-hmm. Now, who goes to check? In reality, the order has been received from a subsidiary or from a friend. Nobody knows anything. Just order mila, bas. Are yaar. Okay, anyway. We have a speaker, Monil Shah. Bolo. Good evening, Sharad sir. Hope you are doing well. So my Yeah. so my only observation that was that he like just now heard that UPL is coming up with a right issue of 4,500 crore, and I think sometimes back only they did 1,000 crore buyback. So what do you think? Like, are they taking advantage of this bull run or? Monil Shah. Yeah, yes, sir. You talking about UPL? Yes, yes, sir. Okay. In 2013, I was raided. मेरे वहाँ 4 दिन चला रेड. मेरे वहाँ से निकल के उसके वहाँ गए थे. आधा दिन चला. 350 करोड़ डिक्लेयर किए. Okay. और जो आदमी अपनी औरत को नहीं संभालता उसका मतलब आई फेल टू आर्ग्यू विथ यू. Sorry, sir. No, just sir, just wanting to understand ki, is this a madness which is allowing such promoters to raise such kind of यस money? यस यस. अरे मोनिल भाई आपके पास वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड है भी तो लेके आओ अपने इशू करते. Correct, sir. Correct, correct. ऐसा Okay. ही चल रहा है. ऐसा ही Okay. चल रहा है. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you so much. Sir, sorry, I'm interrupting here. The one other thing that I want to sort of tell the audience that is here is that every time there's a boom in mania, no, so a lot of companies jump onto that bandwagon, onto a bandwagon, right? So I recall 99, I think, something like that, yeah. And I was a kid. I never used to play in the market, but a friend of mine, a Sindhi incidentally, he used to be very up to date. He used to sit with the broker and stuff like that. It was in Devlali near Nasik. So, so he told me, and I remember distinctly now, 25 years on, 24 years on. He told me that I can see name changes of the companies happening from something chemical to something IT और इन्फो सिस्टम्स स्टफ लाइक दैट. अभी का वो मेनिया है एआई. तो जैसे ही मैं सुनता हूँ किसी कंपनी ने एआई डाला है अपने उसमें, तो मेरे को पता है कि यहाँ तो झोल है, राइट. एंड आई एम सीइंग
people saying, I'm going to use AI to do something. A chemicals company, manufacturing company. So that कि and मेरा actually AI में काम है, right? So uh, when a chemicals company says it or a manufacturing company says it, I know how far he's and how far he's able to do or how much he's bullshitting. So the moment I hear a ticker, I subscribe to these services that give news based on some keywords. The moment I see a listed company say AI, मेरे को लगता है यार अब तो झोल है यहाँ पर, कुछ होने वाला है. और वो वही वही है बस. अभी सब फायदा उठा रहे हैं. उठाओ, just be careful, that's all. क्या बोल सकते हैं इन सब का? See, Chirag, I believe in democracy. I believe in free markets. And buyer beware. ठीक है ना, आप उल्लू बनते हो तो बनो, हमको क्या प्रॉब्लम है? And why should I mind if somebody is taking away your money? Yeah, correct. Why should I object? ले लो. और हो सके तो मुझे भी दे दो थोड़ा. So the point is, why you should, I hear a lot of people, ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है. अरे होने दो ना, अपना क्या जाता है? You can't make a dent in anything. Yeah. You cannot change anything. तो क्यों मगजमारी करने का? हाँ, राइट करो सर, अपना बनाओ. और क्या, इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड. नहीं, ये मोनिल भाई ने ये बोला कि यूपीएल का इतना आ रहा है. Now I will benefit from it. Whether मोनिल भाई will benefit or not, I don't know. स्ट्रेटेजी हो जाएगा वीकेंड में कैसा पैसा निकालने का. So we have to see. I have one saying which is engraved in my brains. Every problem or a loss or difficulty, it's a great opportunity. Right, agreed. So I think we should not. अभी उसने ऐसा वो ये अभी क्या बोलते हैं, पोली कैब वाले प्रमोटर के वहां रेड गिरा. ठीक है, अपने बात करते हैं, टाइम पास. लेकिन आई डोंट नो हिम. आई हैव नॉट नेवर सीन हिम एंड आई वुडंट वांट टू सी हिम आल्सो. तो क्यों अपना को पता था रेड है, मार दो साले को 500 200 500 लोट, क्या है? There is an opportunity in everything if you think properly. चलिए भाई साहब. Sir, sorry to just one question from my end. हाँ मोनिल भाई बोलिए ना. Sir, so just wanted to understand that, मतलब, if you would, it is up to you if you want to answer. Like, कि मतलब आपके radar में, if there are any 2 or 3 names which you think which are in futures and options, at some point, मतलब, it is in your radar and you are just waiting that the moment it cracks like 5-10%, then you are all in for shorting that particular. So if you could just. No, FNO hardly I buy anything. I don't buy because it is not tax efficient, and by buying in futures you do extra leverage, which I don't like actually. So as I understand, I believe, and world over, futures market are for hedging only. Having said this, if I spot something, I have the patience to wait for year, 2 year, 3 years.
until what I have dreamt of happens. This polycab and all, I am after it since a long, long time. So if you have the patience, then only do a short trade. Otherwise, after earlier also I had told, I am known as Mr. 25. Mr. 25. Suppose the stock is at 100 and it goes down to 75. Then I enter full force. Then it becomes 50%. After owner of DMart comes. Full force. Then again it goes to 75. Again I enter with a double force. So I see what you say. And where are you from, Monil? Sir, I am from Mumbai only. You give me a call. Sure, sir. Sure, sir. Sure. Okay, thank you. चलो हाँ भाई बोलिए कोई तो भी बोलो भाई गुड इवनिंग शरद सर। गुड इवनिंग शरद सर, मेरा मेरा सवाल ये था कि अभी न्यूज में आया कि आईएमएफ ने वार्न किया है इंडिया को कि आपका जो डेट है वो 2 ट्रिलियन या कुछ ऐसा इससे ज्यादा हो चुका है। तो ये इसका क्या मार्केट में कोई इफेक्ट पड़ता है? अरे कोई इफेक्ट नहीं कोई इफेक्ट नहीं है ये अगर अपने बाजार में एटम बम भी फूट जाएगा ना तो बाय ऑन डिप वाले आ जाएंगे कुछ नहीं होगा अपने बाजार को अटूट है हमेशा के लिए एवरी मंथ 1500 पॉइंट बढ़ेगा निफ्टी गिनती मार लो 10 साल में कितना हो जाएगा ओके, थैंक यू। नहीं मैं मतलब I'm trying to say yeah see you throw any uh, 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 a ball a curve ball market just deflects it so actually I'm amazed with the strength of the market it's too much so I don't have anything to throw but yes नहीं सर नहीं शरद सर, इसमें कुछ तो लोग, जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोन वगैरह लेके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा रहे हैं। वो गवर्नमेंट खुद उनको प्रेशराइज कर रही है कि आपको करना है, इन्वेस्ट करना है, 1 लाख रुपए साल का, 2 लाख रुपए साल का, उनको जबरदस्ती। और फिर वो उस पर ब्याज भी दे रहे हैं। जो 1 लाख रुपए साल का, 2 लाख रुपए साल का वो एसआईपी कर रहे हैं, उस पर वो ब्याज भी देते हैं 9-10% का। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आता गवर्नमेंट क्यों कराती है। नहीं, सरकार कहाँ करवा रही है? नहीं सर, सरकार ऐसा नहीं मैं ऐसे लोगों को कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बैंकों से जाके जब लोन लिया तो उनको बैंकों ने प्रेशराइज किया कि आपको हम लोन तभी देंगे जब आप हमारे यहाँ एसआईपी कराएंगे हमारे उसमें। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का वो चलाते हैं बैक चैनल पे, उसको वो करते हैं। तो वो प्रेशराइज करते हैं कि आप उनसे कराइए। और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो प्रेशराइज कर रहे हैं और लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं। सर ये सब जायज है जिसको मरना है मरता है अपने अपने क्या कर सकते हैं मैं आपसे एक बात पूछता हूँ आपके पास इतना टाइम कैसे है ये सब सोचने का आप अपने बारे में सोचिए अपने खानदान के बारे में सोचिए अपनी फैमिली के बारे में सोचिए मजा करो नहीं यार एक करने दो जिसको जो करना है और आपको पता नहीं होगा इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल किस किस को संभालेगा और दुनिया की कोई ये बात सही है। गवर्नमेंट अपना कंट्री को संभाल नहीं सकता है इतना बड़ा देश है अपना तो चलते रहता है यार ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा आपके फैमिली पे और आप कैसे पैसा बनावे बस वो चिरा गया तेल लेने शरद गया तेल लेने में सब आप अपना संभालो एक नहीं, बिल्कुल पंख सही बात है सर, बिल्कुल सही है।
एक पंख से अपना पिछवाड़ा ढक के रखना हमेशा। और अब जाके जो ये ये आपने ही बोला IMF का। तो from where you are coming, I understand you are good. So I don't think we should bother. Just hit a sixer and get out. लेकिन जिस दिन भी ये बाजार जाएगा, it's going to be a free fall. 2-3 दिन में ही 12,000 आ जाएगा। चलिए, सॉरी। हाँ भाई, सनम कुमार। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोल। शरद भाई, मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहूंगा। मैंने आपसे जो लर्निंग ली, मैं पिछले 25 साल से मार्केट में हूँ और 1 साल से आपके टच में हूँ। 24 साल में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया जितना 1 साल में कमाया जब से आपके टच में आया। और दूसरा, जो आपकी बात है कि फ्यूचर जो है वो शॉर्ट करने के लिए है, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरा कहना ये है कि एक डॉक्टर पे विश्वास करो। अगर जो शरद भाई बोल रहे हैं अगर विश्वास करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं इतना ही बोलूंगा बस। नहीं सर, मैं क्या बोलता हूँ, आई एम नॉट आपसे मेरी बात भी हुई थी शरद भाई, याद है आपको, लंदन से? हाँ, नहीं मैं क्या बोलता हूँ, आई एम नॉट बॉदर्ड कि आप सुनो नहीं सुनो, मेरा फॉलोअर बढ़ाओ। मुझे जितना समझ में आता है मैं बोल देता हूँ, बाकी वो अपना ना आपका काम है। अपनाओ मत अपनाओ, गाली दो, 12,000 बोलो, शरद एंड भाई, गेट वो ये। तो सब तरह के लोग हैं, जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे, लेकिन एट द नहीं एंड ऑफ द डे अगर हमने वो पैसा मैं कमाया आपके सुनने से तो हम बोलेंगे ही ना। एक हमारा ओपिनियन हो सकता है, जो ओपिनियन लेके बैठो, और दूसरा है जिस ओपिनियन से पैसा कमाओ। वो ओपिनियन इंपॉर्टेंट है ना, जिससे पैसा कमाओ। मैं तो इंडिया शाइनिंग हमेशा बोलता रहूंगा, पर पैसा कहाँ में आ गया नहीं कमाया है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ सर, आपकी बात में यकीन नहीं करता सर। ऐसा क्यों सर? आप हमारा हिस्सा तो भेजे ही नहीं। अरे शरद भाई याद है आपको? पकड़ लिया पकड़ लिया आपने। पकड़ लिया। नहीं शरद भाई, वहीं आके देके जाऊंगा हिस्सा पर्सनली। हाँ, क्या बोले? आके देके जाऊंगा हिस्सा पर्सनली। मैं समर्थ भाई के टच में हूँ रेगुलरली। ओके। यश, आपको इनकी आवाज आ रही है सनम जी की? हाँ, आ रही है। हाँ आ रही है, मुझे आ रही है। अच्छा, आई कांट हियर। थैंक यू सनम भाई। अब अरे चलते थैंक यू हैं। सर, आपसे बात करना ही थैंक यू हमारे लिए तो। अरे कुछ नहीं, नहीं देखे, नहीं, ये गलत बोला। मैं भी आपके जैसा ही इंसान हूँ, सिर्फ उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन हरकतें अभी भी 16 साल की है। आधार शरद कार्ड भाई, भी वही तो ठीक है। रहना चाहिए, वही इनक्विजिटिवनेस तो रहनी चाहिए। पैसों से वो नहीं आती ना। वो इनक्विजिटिवनेस जिसके अंदर रहती है वो ग्रो कर जाता है। जो जिसके अंदर बचपना मेंटेन रहता है वो ग्रो कर जाता है। अब जो मैच्योर हो जाता है वो अलग हो जाता है ना, वो अलग मोड में चला जाता है। तो हम तो आपसे लर्न कर रहे हैं नहीं, शरद भाई। और my father expired when I was 8 or 9 years old, and my mother was 28 or 29 maybe. वो तब से मुझे विमेन का इतना है, कोई भी आदमी कोई भी गलत हरकत करता है ना विमेन के साथ में, खून खोलता है। मेरा भी यही हाल है शरद भाई। मतलब अपनी अपनी सीनियर प्रोफाइल्स में रहा इतनी साल, और 3 लोगों को नौकरी से निकाला, सिर्फ इसी बात पे निकाला कि ये जो मतलब डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स फेयर सेक्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा। ये मेरे साथ भी एटीट्यूड है। नहीं मतलब एक क्या देश है यार, यू डोंट रिस्पेक्ट वुमन, कोई भी हो, कितनी भी अमीर हो गरीब हो, क्या फर्क पड़ता है। आंखें झुकी रहनी चाहिए कोई भी औरत के सामने। बिल्कुल सही बात है।
मैं जितने भी है मेरे फीमेल फ्रेंड्स और क्लाइंट्स, उनको बेन करके ही बोलता हूँ, क्योंकि कंफर्ट नहीं लेना है मुझे किसी के साथ में। और ये अभी पिछले दिनों मैं पुलिस स्टेशन गया था, वो कोई चोरी वोरी हो गया था मेरे वक्त, तो जाके बैठा, माशाल्लाह क्या यंग वुमन वर्दी में फटाफट काम कर रही है। मैं बोला ये सही है, अपना देश अब तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। विमेन को एम्पावरमेंट और बराबर का हिस्सा, आई डोंट नो द प्रॉपर वर्ड्स, बराबर का दर्जा, विल गो प्लेसेस यार, विल गो प्लेसेस। अनदर शरद भाई, थिंग, मैं आपको ना एक बहुत ही बढ़िया अपना एक्सपीरियंस एक मिनट बताता एक हूँ। मिनट सॉरी एक मिनट एक मिनट एक सॉरी मिनट। सॉरी। सब बोलते हैं पुलिस चोर है ना, ये है ना वो है ना, कुछ भी पिक्चरों में भी दिखाते हैं ना, लेकिन अब मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में, माय गॉड, दे आर सो ब्लडी एफिशिएंट बियॉन्ड लिमिट। मतलब आई कुडंट इमेजिन। तो आई एम टॉक, आई नो बॉम्बे पुलिस, सैल्यूट टू देम, दे आर टू गुड। मेरे वहाँ एक 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 लड़का रखा, वो चोरी करके भाग गया, तो मैं तो ऐसे ही पुलिस स्टेशन में मैं जाके बोला वो चोरी हो गया ये वो बोला कितना था, मैं बोला 47,000 था। बोले ठीक है FIR। 2 दिन पहले फोन आया कि आके पैसा लेके जाओ, तो मैं बोला वो किधर मिला? बोला वाराणसी से 200 किलोमीटर दूर से लेके आया। नाउ हु डज ऑल दिस फॉर 47,000? तब से और भी एक दो किस्से हुए मेरे साथ, तो पुलिस इज टू गुड। हाँ बोलिए बोलिए सर। शरद भाई, असल में क्या है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं इंडिया को लेके, जो लोग इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। मैं ब्रिटिश रेजिडेंट हूँ। यहाँ पे मतलब कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, ठीक है, बट बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लाइफ सेविंग है। मेरे को ना स्टमक में हर्निया है, राइट। 1.25 साल से मेरा वेटिंग है ऑपरेशन कराने के लिए NHS में, राइट। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और इंडिया में आप ये सोच सकते हो कि आप 50,000 रुपए खर्चो और जाके आपका पेट का ऑपरेशन करा के आ जाओ। आप 20,000 रुपए खर्चो और रूट कनाल करा के आ जाओ। वहाँ यहाँ पे 1.5 लाख रुपए रूट कनाल का लगता है अगर आप एक बारी में हो। ये जो एडवांटेजेस हैं वो अलग तरह से, और डिफरेंस आ रहा है जो आप बोल रहे हो। नहीं सेकंड नहीं जो आप लेके लेके नहीं 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 यार, आई बेग टू डिफर विथ यू। श्योर सर। Over a period of time, India will be more expensive than UK and US. In certain sections, it is. वो छोड़िए ना, वो ये दिस इज। बेकार है। हाँ ठीक है नहीं छोड़िए। आप फोन करो, चलो चलो हाँ हाँ फोन मैं करता हूँ। करो। थैंक यू थैंक यू। हाँ भाई, वो कौन है भाई? Hello. हाँ Good बोलो। evening, sir. Sir, I'm that same हाँ guy गुड। who told about that $5 trillion Modi agenda in the previous या space. या Sir, yesterday's mayhem and the day before yesterday's up moves, down moves, everything. After seeing that, the market cap still now is today $4.28 trillion. And I personally don't feel that FM or any economic advisor or even RBI might interfere in this rally presently. This is mainly because they are all under ultimately the present government ruling party control. They just want India's economy and they just want to project themselves that we have done this over the past of 10 years, where no government has done this. So I think that's the reason why nothing won't happen. I don't agree with you. I don't agree with you. So my view. I really Because respect no your no views, no. but okay. No, no, because if they do that, then the
coming after elections, they will have huge problems. Sir, your voice is not so audible to me. Just a second, I'll change my network. Chirag, you can hear me? Yeah, I can hear you. Is my voice audible, sir? I can hear you now. I just changed my network. Yeah. I said in May there is election. The government cannot afford this. Okay. Okay. Sir, and another You doubt and a small doubt, sir. Hello. bol. Sir, how is the Phenolics cables management, sir? No. Please, sorry. Sir, shall I message? No. No B group for me. Only A group or MNCs. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. चलो भाई और लियो. हेलो सर, हाँ नमस्कार। बोलो. सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, एक पर्सनल है, 2 टेक्निकल। तो पहला पर्सनल क्वेश्चन तो है कि आप जैसे मेरे को लगता है कि आप बहुत करोड़ों में खेलते हैं और आपने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, आप इतनी हेल्प एडवाइस देते हैं, तो क्या मोटिवेशन है आप लोग हम मतलब मेरे को बहुत सारी टिप्स मिली हैं, आपसे सीखने को मिला है, आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि आप इतनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की? No, is this a question or a statement or what? नहीं, आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या मोटिवेशन है आपका, मतलब आप इतना मतलब करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि लोग हेल्प कर रहे हैं, मतलब ये But I am not helping anybody. मैंने आज तक किसी को ₹1 नहीं दिया नॉट ट्विटर. नॉट इन द मनी वाइज, बट आप जो एडवाइस देते हैं मतलब बहुत अच्छी होती है, मतलब मेरे को और कहीं नहीं अरे मिली है पर बॉस मेरे को वो जितना मालूम है, हाँ, if I share, तो what's wrong in that? नाइस। और सर मेरा सेकंड है जो अभी नहीं first you answer me now. What is the problem? नहीं वो अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई हेल्प कर रहा है किसी चीज की इतना And I am not helping anybody. I am not helping you or anybody. No. I सर am मैं stating my views, बस. हाँ, लेकिन सर आप इतने बड़े मतलब मेरे को लगता है कि आप बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, तो लेकिन मेरे को सुनने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है कि इस ऐसी दुनिया हो गई कि मैं इतने लोगों को सुन सकता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है वो चीजें। नहीं वो तुम्हारा हाइट कितना है? 5'6", और वजन कितना है? वजन 68। तो पक्का मैं बड़ा हूँ तेरे से, बहुत बड़ा हूँ. नमस्कार I सर, am थैंक 6 feet 1 inch यू। ओह माय गॉड and 100 kgs. तो बहुत बड़ा हूँ तेरे से. सर। चलिए और दूसरा सवाल. या सर जो अभी जो अभी जो डाउनफॉल आया था मंडे ट्यूसडे को, एकदम सब एकदम मार्केट 1.5% क्रैश कर गया था, तो मेरा पोर्टफोलियो 4% नीचे आ गया था, तो इसका रीजन क्या होता है, मतलब कोई भी किसी को कुछ मेरे को क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था, कुछ इस पे बता सकते हैं कुछ? At that particular moment, sellers were more and there were less buyers, so the market fell. चलिए फिर तीसरा सवाल. ओके सर, अब मैं जैसे मेरा पोर्टफोलियो 25 लाख का था स्टार्टिंग जनवरी में, इस और उसमें पोर्टफोलियो में 20 लाख का मेरा म्यूचुअल फंड था और 5 लाख का स्टॉक्स का। तो मैंने मेरे को बाद में मैंने मॉनिटर करना शुरू किया, तो म्यूचुअल फंड से इतना रिटर्न नहीं आ रहा था, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया सारा म्यूचुअल फंड, सारे बेच के मैंने स्टॉक ले लिया। तो अभी मेरा पोर्टफोलियो है अराउंड 50 लाख के करीब हो गया। तो मेरे को 2 साल का टारगेट कर रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ का। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक एमटीएफ होता है कि एमटीएफ ठीक होता है, या दिस इज आल्सो अ ट्रैप लाइक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसको अवॉइड करूँ या कम करूँ? क्या समझा नहीं, वापस बोल. अ, अब जैसे मैं 50 लाख के तेरे पास में शेयर है. हाँ अभी है मेरे पास। हम्म. तो अगर मैं एमटीएफ यूज करता हूँ तो मैं जैसे मेरे को 1 लाख का शेयर करना है, तो मेरे को 20-30 हजार ही का कैपिटल देना है, तो मतलब मार्जिन ट्रेडिंग जो होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग जो होता है, मैं ऐसे से डायरेक्ट यूज करता हूँ, तो उसमें होता है ऑप्शन।
तो मैंने एक दो यूज किया था तो मेरे को ठीक लगा, लेकिन मेरे को कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रैप होता है क्या, इसको अवॉइड कर, आपका क्या इसमें कहना है, मतलब इसको यूज करूं या? देखिए, if you take any kind of leverage, हम्म, it will kill you. लेवरेज नहीं लेने का बच्चा, ओके ओके। और बेच देना सब। अभी 50 लाख का 1 करोड़ तो 4 साल में ऐसे ही हो जाएगा तेरा। बेचो बेचो, सूख पाओगे। अभी और एक बात है, ये आपके लिए नहीं है। आप शेयर लेते हो ना, तो सपना मत देखा करो, वैल्यूएशन समझो ये वो। हाँ सर, मैं चलिए, आप हाँ सर, आप लोगों से सीख के ये वैल्यूएशन देख रहा हूँ, तो मैंने कम पी पे दो सारी पैरामीटर्स होते देख के कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा अरे 80। भाई बापूजी, कोई सीख नहीं सकता है, मैं भी नहीं सीख सकता हूँ पूरा। तू कहाँ से एक्सपर्ट हो गया? नहीं नहीं, एक्सपर्ट नहीं, मतलब सीख रहा हूँ मैं तो, अभी मेरा लर्निंग है, तो 1 साल से, अभी 6 महीने से सीखना शुरू किया है मैंने। तो पहले निकल जाना पहले, फिर सीखना। फिर सीख के मरवाएगा, उससे अच्छा खत्म कर, पैसा रख जेब में यार, दिसंबर में, भूचाल आने वाला है। दिसंबर में बेच दूं, जनवरी में खरीदूं दोबारा, आप ऐसा कह रहे हो? अरे यार, आपको जो करना है करो, मैं सिर्फ बोला बेच दो, अच्छा। फिर खरीदने का वो तू ही बात किया। ओके ओके ओके, थैंक यू। समझ गया, थैंक यू। बोलिए भाई। नमस्ते शरद सर, गुड इवनिंग सर। मेरे पास दो क्वेश्चंस थे। फर्स्ट, the question is about the Anup Engineering Limited. So, is it good to accumulate for next 6 months at this current price? The second question is about RHIM. So, उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन it's, I mean, trading range bound. It is trading, so long term 6 months to 3 years. What do you think about this RHI Magnesita India Limited? And Anup Engineering, what is the rate? For Anup Engineering, right now it is 2,638 rupees. So you have or you want to buy? I want to buy. I mean, I haven't started accumulating anything. I missed So this. you don't have it, right? No. Or and RHIM? That is also, I don't have it. Okay, so I will inform you at the right moment what to buy. You don't buy at this elevated rates. Okay. Wait. Okay, sir. Wait. Yeah. Thank you. Thank you very much, Shad sir. चलिए भाई, बोलिए। पियर लियो आपका हो गया क्या? मेरा अलबेला, मैं अलबेला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कर लूँ? हाँ हाँ, बोलिए। नमस्ते सर। मैं ये पूछ रहा था कि आजकल मतलब मैं इंडिया में ट्रेडिंग करता था पहले, फिर मैंने बंद कर दी, अब मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ। शुरू करी है पिछले 1 साल से। तो आजकल मेरे को ऐसे ऑफर आ रहे हैं कि ट्रेडिंग आप कर लो, और मतलब हम कर लेंगे आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग, और जो प्रॉफिट होगा वो 10% के स्प्लिट से शेयर कर ले। 10% मतलब हमारा है, बाकी 10 या मतलब 5 to 7% डिपेंडिंग ऑन नेगोशिएशन, इस रेंज में, और बाकी हमारा आपका है, कैपिटल आपकी होगी। और उनके वेरीफाइड ट्रेड, ऐसा नहीं है कि वो मैंने वेरीफाई किया तो वेरीफाइड ट्रेड वगैरह भी वो दिखा रहे हैं कि ये वेबसाइट से ट्रेड वेरीफाइड है, और वो ट्रेडिंग भी आप ऐसा करेंगे कि आपका अप्रूवल लेके ही ट्रेडिंग होगी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करते रहेंगे। नहीं, तो मैं वो ये पूछ, आपके अकाउंट में होगा आपके? वो एक और लेयर होगी उस अकाउंट के ऊपर, मेटा ट्रेड करके होती है, उसमें उसके ऊपर होगी जिसको मेरे को एक्सेस होगा। और हाँ, उसमें भी 2 ऑप्शन है, एक में वो सारा क्लब कर रहे हैं, एक कंसोलिडेटेड कैपिटल बना रहे हैं, एक में वो सिर्फ आपके लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके अकाउंट में घुस के। बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये मैं काफी टाइम बाद एंटर कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में, तो ये नया मतलब नया नॉर्म है क्या आजकल, ये चल पड़ा है कि ऐसा ये नहीं, ऑथेंटिक है या फ्लॉड है ये? आप कितने पैसे की बात कर रहे हो? आई मीन बिगनिंग में तो मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, बट डिपेंड करेगा आगे क्या चलता है। नहीं, अच्छा है।
if they are doing it in your account with your broker, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हाँ, मेरे को भी लग नहीं रही प्रॉब्लम, बट मेरे को लग रहा है कि टू गुड टू बी ट्रू, तो इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर लूँ, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। नहीं नहीं, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि बिकॉज सपोज इफ आई वुड डू इट, आई टेक 30% ऑफ द प्रॉफिट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आप भी इस डोमेन में? ओके ओके। नहीं, बट मैं 1 2 3 4 जन का करा, लेकिन आई एम वेरी एक्सपेंसिव, वो छोड़िए, आपको नहीं जमेगा। ओके ओके। मैं लेकिन आप ये कह रहे हो, हाँ बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि ये जो ऐसा सिस्टम है ये नॉर्मल है। See, the challenge is कि see, there are 2 3 things. First of all, the money should be with you. It should be deposited in the broker's account in your name. And secondly, आप ड्रॉडाउन का बात करो कि 1 करोड़ में से 15 लाख लग जाएगा तो आप बंद कर दोगे। वो कर लिया मैंने। और आप पैसा उनको कैसे दोगे? उनको वो उसमें है, ऑप्शन है उसमें, बताया 1 2 ऑप्शन की, मतलब या तो ऑफिशियली चेक काट के लेंगे या फिर वो। नहीं, पर चेक काट के आप दे नहीं सकते हो ना सर ऐसा। ओ अच्छा, नहीं दे सकता मैं ऐसे? मुझे नहीं नहीं लगा। नहीं, चलिए, there are many SEBI laws and all that involved. Okay, See, okay. where are you residing? Where are you residing, Albella? Doesn't want to talk. अभी तो मैं सर मैं दोनों में हूँ, इंडिया में भी हूँ, यूएस में भी हूँ। अच्छा, 1 पाँव उधर 1 पाँव इधर, और बीच वाला अफ्रीका में। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए, अब बोलिए ना अलबेला। अरे भाई, मैं इंडिया में भी हूँ, यूएस, मतलब मैं दोनों का रेजिडेंट। हाँ, मैं बोला 1 पाँव इंडिया में, 1 पाँव अमेरिका में, और बीच वाला अफ्रीका में, ऐसा। शुरू कर दूं? हाँ कर दो, बिंदास। नहीं, वो मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि ये उस बंदे से शुरू करवा लूं आप। अरे, if you want more details, you speak to me. My number is on my profile, WhatsApp. सर, रिस्क आप ले रहे हैं, दूसरे को पूछने से क्या होगा सर? यही बात है ना यार। उपेंद्र मिश्रा। शरद सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, कुछ महीने पहले आपने इसी स्पेस में स्नाइडर इंफ्रा के बारे में कहा था, तो वो शेयर मैंने लिया था और काफी 1.5 साल हो गया भाई। वहां पर मैंने थोड़ा लेट लिया था, पर अच्छा उसमें गेन हुआ है, तो अब क्या करें उसका? यार, ये इन्वेस्टमेंट वाला चीज है, इसमें क्यों पूछते हो? अच्छा, कितना लिया भाई तो? मैंने 2000 लिया है। तो कितने में लिया? 180? मैंने 230 में लिया था सर। और आज क्या बन रहा है? आज तो 400 के आसपास है। बंद तो आज कम आया होगा, 384-85 के आसपास बंद है। नहीं, वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता। तो एक काम करो, 30% नफा हमको दे दो। ठीक है सर, एग्री। ओके, तो इफ यू अग्री तो यू डू वन थिंग। बताएं। आप मतलब 4,60,000 डाला है ना, तो उतने का बेच दो। ठीक सर। फिर बाकी का चौकड़ी मार दो।
नहीं, एक 1000 बेचो ना, बस बहुत हो गया, छोड़ो। ठीक है सर, ठीक। और 1000 20 साल के बाद में वो कम अच्छा। से कम 20,000 में बिकेगा। वाह। ये ले ना, यूबैक हिंद ले, बहुत अच्छा है भाई। कौन सा सर? यूबैक हिंद। यूबैक, अच्छा ठीक। ओ सिर्फ आपने 1000 करोड़ का इक्विटी है, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। बोलिए भाई, बोलो ना भाई। विरल, क्या नाम है? हेलो सर। वॉल स्ट्रीट ऑप्शन। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर, आईएक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? आईएक्स शेयर में पोजीशन बना रखा है इसमें। अच्छा है। मतलब मेरा ट्वीट पढ़ो ना आईएक्स के बारे में, मेरा ओपिनियन ट्वीट सब पढ़ो। ओके। एक ही भाव है, 1.5 साल हो गया। ओके सर, थैंक। और ट्रेडमिल पे दौड़ने का आदत है क्या? हाँ। ट्रेडमिल पे दौड़ने का आदत है क्या? हाँ, दौड़ता हूँ सर, जिम जाता हूँ तो ट्रेडमिल पे, अदरवाइज पार्क में, ऐसे ही रोड पे। पार्क में तो ठीक है, लेकिन ये मतलब आईएक्स ऐसा ही है, इधर का इधर ही रहेगा, छोड़ो। ओके। आलकेम ले ना, आलकेम आलकेम। बढ़े। ओके सर, आलकेम थैंक यू वेरी बढ़ेगा। मच। थैंक यू सो मच सर। या बोलिए, who's next? बोलिए भाई। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ऑलमोस्ट ये मार्केट में 25 ईयर से हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत सारे अप एंड डाउन देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको तो करीबन 1.5-2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पे ही बोलता हूँ कि जो आपने आईटी रेड के बारे में बताया, तो वो बात में मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से, आईटी मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड से बिलोंग करता हूँ, और कहीं ना कहीं जो रेड इनके ऊपर हुई है, 50 लोकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, उसके वेयर हाउस है, तो वो जब भी इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, और इनके बारे में तो बहुत सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आप भी बता रहे हो, और कहीं ना कहीं मतलब थ्रू वेरियस चैनल या ये समझिए प्रिंट मीडिया में भी पता चलता है। तो इन ये लोग चाहे कुछ भी कहें, बट इनके यहाँ से जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड लेकुन है, वो जरूर आएगी। एक तो ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ह्यूज रेट मानी जाती है। 50 लोकेशन कोई कम नहीं होते। ऐसा नहीं कि कंपनी हेडक्वार्टर मुंबई में है और 3 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, वैसा नहीं है। 50 लोकेशन बड़ी बात है। सेकंड थिंग सर, आप जो बोल रहे थे कि इंडियन जो एजेंसीज है, उसके पास में जो टूल्स रहते, वो रियल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल्स है। वो पुराने में भी थे, अभी भी थे। तो इनका हर एक चीजों का ट्रैकिंग है, इनके पास में जो सिस्टम्स अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर से, उसमें उन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, किस टाइप के डिस्काउंट पास कर रखे हैं, कोई रॉ मटेरियल का आप जैसे बता रहे, तो उसके बारे में तो ये जब एजेंसीज जब मन में ठान लेती है, तो कहीं से भी वो चीज निकाल सकती है। ये वाली बात। तीसरा सर, ये चिराग जी जो इसमें बोले थे, चिराग पटनायक, कि एआई वाला, वो बात से मैं 100% एग्री हूँ कि आजकल ये ऐसे वाले सगुप्ते उछाल के कर रहे हैं, बट रियल में उसकी प्रैक्टिकलिटी 100 में से आप देखें तो 10% ही मिलती है। बट ओवरऑल सर, जो आपके थॉट प्रोसेस है, उसको हम लोग सुनते हैं। मैं तो जनरली कभी स्पीकर या इसमें आता नहीं, मैं आपके थॉट ही सुनता हूँ। बट कहीं ना कहीं जो इस बार आपने जो बताया, आज आपने स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड किया है, सो वी आर थैंकफुल टू यू। बट आपके जो विचार है या आपकी जो विजन है, वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और एक्चुअली मतलब ये चीजें हम देख पा रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू सर। यानी आप ये कहना चाहते हो कि रेड मेरे हिसाब से पड़ा? नहीं, आपके आपके अरे सर, आपके हिसाब से थोड़ी होता है। वो तो देखिए, गवर्नमेंट है या उसका विजिलेंस है, या जैसे आप बता रहे थे उस हिसाब से। बट आप जो
हम सब लोगों को जो ये फोरम पे है या उनको एक जो एजुकेशन या नॉलेज दे रहे थे, वो रियली प्रैक्टिकली देखा जाए तो वैसी ही चीज होती है वेरियस कंपनीज वगैरह के जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह का इश्यूज होता है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपने जो नरेट किया वो सही है, वो हमें गले उतर रही है ऐसी सारी चीजें। बाकी तो देखिए गवर्नमेंट अपना खुद का काम करती है। गवर्नमेंट के खुद के अपने आप जो आप बता रहे थे उस हिसाब से उनके स्टडी होते हैं, उनके रिसर्च होते हैं, उनका सर्वेलेंस होता है, उसके हिसाब से करते हैं। अपन लोग तो बहुत छोटे आदमी है गवर्नमेंट के बारे में सोचने में, बट गवर्नमेंट हो या ये सारी एजेंसीज है वो रिटेल इन्वेस्टर हो या शेयर मार्केट के प्लेयर हो, किसी से भी बियॉन्ड सोचते हैं सर वो लोग भी तो एक अपने आप में। एजेंसी में ना, एक जी सर। एजेंसी में एक बंदा इंटरव्यू के लिए गया, जी सर। हाँ। फिर लंच टाइम हुआ तो बोला मैं नीचे पैसा भी विड्रॉ करने आज जाके आता हूँ। हम्म। तो विड्रॉ करके आया एटीएम में से। हम्म। वो बोला देखो हमारे पास ऐसे टूल्स है। हम्म। बोले क्या इंडिया में क्या? बोला दिस इज योर पिन ऑफ योर एटीएम। बोलो। हम्म। उस दिन से वो कान पकड़ा कि इंडियन को उल्टा नहीं बोले। परफेक्ट परफेक्ट सर। और इवन सर जो ये इनके कंपनी के प्रेमाइसिस होती है वहां पे वो जब भी ये रेड होती है या जो सारी चीजें सेज करते हैं, तभी उनके कंप्यूटर के नेटवर्क में सारी चीजों में सर उनको सारी मूवमेंट पता चल जाती है। ये लोग सोचते हैं नहीं नहीं। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ। समझो पोली कैब के वहाँ आज रेड हुआ। हम्म। They must be under surveillance for at least minimum 1 or 1.5 months. एग्री सर एग्री, सही सही बोल रहे हैं आप। हाँ। पूरा रिकॉर्डिंग फोन टेपिंग सब चालू होता है। हम्म। सब डिटेल इकट्ठा करने के बाद में रेड करते हैं। ऐसा नहीं है अंधे में रेड नहीं करेंगे। हाँ हाँ एग्री हूँ सर एग्री। ये बिल्कुल ये प्रैक्टिस है सर। मैं तो खुद जॉब करता हूँ 25 साल से। पहले आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं अलग अलग कंपनी में मैंने जॉब किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज आप जो बता रहे हो अलग अलग इंडस्ट्री की प्रैक्टिस और किस तरीके से एजेंसीज इनको रडार में रहते हैं या सर्वेलेंस करते हैं, वो मैं बिल्कुल आपकी जो बात है उसको लिंक कर पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स थैंक्स भाई। यस, हु इज नेक्स्ट? गो अहेड। हेल्प। बोलिए ना भाई कोई। नमस्कार शरद सर। सर आपका व्यू जानना था यूनियन बैंक के स्टॉक पे, मतलब कोई व्यू है सर? वो अच्छा रहेगा। और सर मतलब ऐसे ही मतलब एसबीआई यूनियन बैंक की जो पीएसयू मतलब अरे बैंकिंग में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप जेपी मॉर्गन लेते ना, कुछ उखाड़ नहीं लेते। सिटी बैंक लेते कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। स्टेट बैंक लेंगे कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। बैंकिंग आपको क्यों लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझाओ ना मेरे को। एक बिजनेस है वो कि जो पैसा लेता है और पैसा राइट। देता है, 1-2% का स्प्रेड कमाता है, उसमें आपको क्या दे देगा वो? हाँ, सही है। मतलब सर जैसे यूनियन बैंक वगैरह इनके मतलब प्रॉफिट्स इतने हैं और इनका पी बहुत लो है, तो उस तो ले लो। ये आपको ही मालूम है कैसे? नहीं सर। सबको राइट मालूम सर। है ना। तो वो क्यों बढ़ता नहीं है? सी डोंट फाइंड try and find nuggets of low P. यस Find nuggets of high P. Okay. सर। ये ये आप ये आप यूनियन बैंक लो और मैं यूबैक लेता हाँ हूँ। अपने 2 साल के बाद देखेंगे क्या होता है। सर, यूबैक भी मैंने ले रखा है सर आपके सजेशन पे और देखा, मतलब काफी अच्छा था। तो उसमें मतलब मैं अब मतलब जैसे सर जैसे मैं No, 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 no. This is just to make you understand हाँ भाई। ये बैंक बैंक छोड़ना क्या बुड्ढो जैसी बात करता है? कितने सर, साल का है 23 तू? साल का। है तेरी बोगस।
ले ठीक है सर, एलकेम और यूबैक में मतलब जैसे सर मतलब वही आपसे सजेशन लेना था कि जैसे अभी यंग है, सैलरी तो यार 23 साल का है, दारू वारू पी मजा करना यार, ये क्या यूनियन बैंक बूढ़ों का शेयर ले लेता है यार, नॉनसेंस, नॉट ए बॉय। सर सर आपसे बस एक और सजेशन पूछना था कि जैसे अभी हम लाइक स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर और सैलरीज आती है तो लाइक जैसे ये जो कंपनीज आप सजेस्ट करें यूबैक एलकेम की अच्छी कंपनीज है, गुड प्रॉफिट्स, तो मतलब इन सब में मतलब एसआईपी करना, स्टॉक फोकस एसआईपी करना सही रहेगा कि लाइक म्यूचुअल फंड में मतलब एक पोर्शन ऑफ मनी डालना चाहिए मतलब अभी के हिसाब से, जैसे अभी करंट सिनेरियो जो आप 30% म्यूचुअल फंड, 30% म्यूचुअल ओके सर, फंड्स, बाकी सिप। अच्छा ठीक है सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। थैंक और ये आप सिप और म्यूचुअल फंड रोकना मत। ओके सर। क्या होता है कि जब मार्केट गिरने लगता है लोग अपना सिप रोक देते हैं, तो वो इसका सक्सेस तभी होता है जब आप उसको कंटिन्यूअस ऑल थ्रू मार्केट साइकिल्स यू विल इन्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 years, only then you will get the advantage. यस ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू सर। शरद सर, हाय। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये बड़े आईटी स्टॉक जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इन सब का आने वाले 5-10 साल में आप क्या व्यू रखते हैं? क्योंकि ये तो अभी जब ये लॉन्च हुए थे तब से लेकर अभी तक तो ये कई गुना हो चुके हैं, लेकिन क्या ये आगे भी जाकर कई मल्टीपल होंगे या इस इनसे अब वैसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती? क्या मालूम मैडम, 5-10 साल का तो व्यू अपने अगले वीक का रखो, नहीं अच्छा रहेगा। अभी आपके पास में टेंशन होता हांगकांग में, तो आज वो 16% डाउन था। So we don't know what will hit what. ओके, थैंक यू सर। यानी आईटी स्टॉक का ज्यादा बोला नहीं जा सकता। नहीं, मतलब देखिए, आईटी स्टॉक नहीं, कौन सा भी स्टॉक के बारे में बोला नहीं जा सकता, एक्सेप्ट कि जो अपने एमएनसीज है, टॉप लीडर्स, उनके बारे में आप बोल सकते हो। नेस्ले है तो मुझको लगता है 10 साल में 1 लाख रुपया हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, बट आईटी कंपनीज आई डोंट नो एंड आई वुडंट वांट टू, क्योंकि रिडंडेंसी बहुत है। ये अपनी एआई आने से आईटी में लोगों की डिमांड रहती है कि आईटी का डिमांड रहता है। आई कैन नॉट असेस, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू मेक दैट जजमेंट, सो आई वुड अवॉइड इट। So I have a slightly different take on this. With AI and coding tools like we have deployed in our sort of development team, and we have a plan that all 100 of them will be using these tools within the next 1 year. So basically what happens is productivity rises. So either lesser number of people will be hired, or due to natural attrition the headcounts will fall. So margins in the short term could improve if they adopt it, if they adopt AI. This is, I mean, and this is not just me. This is people who run similar sort of outfits like mine. So there is at least an uptick of about 30% in productivity. So at least in small firms. Now in large firms, it depends on how they use it, how they deploy it. Indian IT firms are mostly body shopping outfits. So I think their incentives are tied to how many people they can bill. So I'm not sure how it will impact, but there is definitely productivity gain for actual coding jobs.
हाँ भाई, कौन है अभी? हेलो प्रदीप जी बोलिए। Yeah, sir. Last time I was on the space regarding this AI and IT thing. Okay, we had some discussion on that same lines. Okay, I'm also into the same background. I'm almost now 2 decades now into IT industry. So AI ने जो अभी for last 1 year I am also using these AI tools which Chirag was talking about. Okay, last 6 months, 7 months now. Okay, the productivity is definitely, the throughput is so good that it's gonna eventually, what's gonna happen is ki uh, where we need like 10 people, there will be now no need for 10 people, okay, to the same job. Okay, and the quality is so good. Okay, the improvisation, what the chat gpt has done and now google is doing. Okay, they're bringing in a much up improvised version of the output. Okay, which we are getting in the on the technology side. Okay, and eventually what will happen is how that there's, I don't know what is doing, a lot of things are going on the open AI side, and how they're trying to bring tools. Okay, where they gonna replace all these things. Okay, with these tools. Okay, people who what now, so now there's no standard work will happen in future. Okay, like if you say tomorrow you need a website to build, you need 10 people team. Okay, that is something that's gonna go away. Okay, that thing is gonna get obsolete. So you're gonna lose people who have developed the school skills also. And now people want the people have to develop their upgrade their skills to that level where AI they can compete with AI. Okay, which is very difficult, not possible at all, because what we have seen, the quality of things that are coming out from these tools, okay, is so good. Okay, I've never seen it. Okay, means it will take me like 2 days to do something, and AI will give me. आप बोलो भाई, अनम्यूट करके, मेरे से मिस्टेक हो गया. Oh, sorry. So I don't know where I was actually where I got muted. But sir, the AI systems which are coming thick and fast. Okay, so this is gonna impact the whole human power. Okay, where the human skills are there, it's very difficult to compete with these tools. Okay, and it's not possible, we cannot generate, means I've seen a work which is done in 2 days, 2 day work done in 15 minutes. Okay, so do कुछ नहीं होगा नरेश, मिस्टर नरेश, कुछ नहीं होगा. See, all these kind of stories have played before. When the computer comes, the people will lose jobs. So programs will come, everything will go automatically. People will lose jobs. Steel so there will be no need of, even that is approved. Their power cars would be dependent on crude. Stories which every Tom, Dick, and Harry knows, and when every Tom, Dick, and Harry knows, nothing comes out of it. It is just a story which does not have any value at all. Nothing will happen. What has changed in the last 25 years? Technology has come miles ahead. How many people have actually lost their jobs? In fact, more jobs have been created. no, So sir, look, sir, this time the story is very different. Okay, till अरे भाई साहब 40 साल से यही बात चल रहा है. This time the story is sir, different. I have started developing, I've started coding since 1998. Okay, so I've coded for every I've never seen this thing. Okay, this thing, so my My personal friend, experience I'm saying. my friend, please understand. You are only thinking about coding, which is a No, very not coding, sir. small, this is a very, that's exactly what you said. No, once Now, product. Sir, what is your what are we doing in IT industry? Just a moment. कुछ नहीं होने वाला है. Anand, you
let him speak. No, please. You. No, हाँ I'm not countering Anand sir. I respect what नहीं he's वो saying. ठीक है चलिए. See, human race, different mind. Every person has a different mind. So you continue with your opinion. Yeah, I would just want to share it. Okay, that's it. That it's like if it's any help for understanding how things are shaping up. Okay, and it's frightening on 2024 side. How these tools will come out. We have not yet seen. We have, if sir, if there is there is one channel on YouTube which is called Cold Fusion. Okay, बहुत ये this channel is basically works on latest technology, brings a lot of latest technology things. Okay, so this is more for a layman terms to go and see what is there, what are things are coming up. Okay, What is the name of the channel you said? Cold? cold fusion. Okay, तो No, वो no. Gold or cold cold cold? COLDFUSION cold Okay. fusion. So So request everybody to go. सो कोल्ड फ्यूजन Go. चैनल जो है ना वो बंदा बहुत डेप्थ में जाता है ये वर्टिकल में. ओके, सो आईटी सेक्टर देखो हम वी आर ऑफशोर. I'm on the offshore side. Okay, so we purely focus on the on just servicing or requests. Okay, but I'm on the product development side. तो मुझे जितना पता है ना जो जिस तरीके से things are coming out. Okay, we might not need so much manpower to do all these things because AI is bringing all the tools that we need. Okay, एक single line लिखने से we can get rid of 10 people work. 10 अगर आज क्या होता है एक प्रोडक्ट का एक वर्जन प्रोडक्शन में जाता है मतलब यूसेज में जाता है प्रोडक्शन में जाता है तो उसके लिए एक लाइन लिख के 10 लोगों का काम जाता है. इतना AI पावरफुल हो चुका है अभी के डेट में. So Pradeep, I mean, see, while I agree with some of your observations, I don't agree with your conclusion. I'll explain why. See, um, every line of code that gets written, right? Every line of code that gets written takes away somebody's job. Okay, I mean, it's a colloquial thing, but you think about it. If I write a form, right, I create a web form that takes in a credit card application. It takes away the printer's job, it takes away the distributor's job, it takes away the data entry person's job, right? But everybody learns to do other things. So it improves productivity, right? But what will happen is that um, mm, uh, the whole IT revolution will spread deeper and deeper into people's lives, right? So 10 years ago, 15 years ago, if you said that, oh, everybody will have, computers in every room and whatever it is, you would have said, okay, maybe it's possible. But no, you would have, maybe 30 years ago, if you said it, it would have been a little hard to imagine. But then if you said, no, you will have multiple computers in every room, you would have probably said, what nonsense. But you think about it today, I don't know about your place, but in my house, every room has 3 to 4 small computers, which are Alexa devices, smart fans, these things like that. Now, for each of these things, somebody wrote code, right? 20 years back, you had code being written for businesses. Then somebody said, okay, let me write code for marketing. Let me write code for internet, right? So it went on to this thing. So as coding becomes more efficient, more code will be written, right? Maybe the kind of skill that you need goes down because you can now describe to it, right? So for example, we work on AI applications. So our objective is not to kind of focus on what core fundamental AI stuff is being done, but we say that we'll use that and we'll build applications on it. So this was a profession that was not available a year ago, or this was a line of business that was not available a year ago, but now it is. So more things will happen, right? As it becomes easier to code, more people will code.
your maid's kids will code, your rickshaw wala will learn to code, he will build his own application, it will come to something. All of those things will happen. Sir, there is a difference, okay, when individuals start to code, okay, no, but means what I can say is that it's very difficult to compete with these tools, okay. They are human cannot write that fast code. One is that sure. Nobody's gonna take up if the tool develops a code which is 2 day which human can write, AI is doing that much faster. Which will you prefer? But somebody The will business will never prefer human. They will Pradeep ji, always. somebody has to give instructions to that AI, no? Who will give that instruction? Chirag sir, I mean, I just want to say a few things. I mean, so Pradeep ji, basically AI at this moment can take away job for tech support or a junior developer. I mean, I myself work on this programming of the what should I say, training of these models and all those things. I mean, if you're familiar with Hugging Faces, it's an open source AI model where we can train a model for a personal use or any particular use case based on the data that we can feed. So, I mean, आज के टाइम पे जो चैट जीपीटी और दूसरी चीजें हैं सिर्फ जूनियर डेवलपर का No, sir, you're looking at how we're gonna implement. You're not looking at the automation side. So automation side is fastly wrapping up with the AI things, okay? And when automation tools start to basically use AI, imagine how fast automation will happen and how much things you don't need people to do it, okay? Automation is gonna take care of that. Yeah, but so people, this is things, Pradeep ji. Pradeep, sorry, मैं बीच में margin कर रहा हूँ. Pradeep and yes, see, this entire discussion is about, you may say, the subject line is read in IT. अभी जो हम लोग समझा रहे हैं AI का applications क्या है, देखो हम लोग सब अलग अलग फील्ड से हैं, IT से रिलेटेड है, बट समरी ऑफ द स्टोरी यही है कि ये सारे टूल्स एंड ऑटोमेशन से कहीं ना कहीं जो 10 to 15%, 20% प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है, बढ़ रही है सारी कंपनियों में, ये एक्सेप्टेबल है. बट इसको एक ओवर खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एआई का मॉडल हो या आपका मशीन लर्निंग हो, ये सारे कहीं ना कहीं तो चीजें ऑटोमेशन एंड कहीं ना कहीं कोडिंग के ऊपर डिपेंड है. मतलब ये जरूरी नहीं कि हर गली मोहल्ले का बंदा प्रोग्रामिंग लिखे या ये सब करे, या आपके हर एक जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है या सोल्यूशन है वो एआई कर देवे. तो इस चीज को यहीं पे मैटर करते हैं कि टेक्नोलॉजी if it is going to help in my business or it is going to enhance my customer experience or my living standard, appreciable. But AI का जो बाकी का negative use होने जो जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा question mark है. So AI related thing, I think we will request Sharad sir and everybody to have a, you may say, another session for a IT enablement, or you may say that one. Here I think we will like to listen or learn most of the things from you, Sharad sir and Chirag sir and other experts. So that's from my side. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ कि इसमें इंडिया के अंदर एआई का प्ले क्या है. मतलब एक तो सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री के जैसे यूएस में एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये प्ले है और काफी राइज की है लास्ट 1-1.5 साल के अंदर. तो इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा प्ले है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, जो मतलब एआई सेंट्रिक है? ऐसा कोई रिकमेंडेशन बताएंगे शरद भाई या कोई और? NVIDIA is a graphic card company. अरे हाँ, तो that is all AI is running on NVIDIA GPU, right? इंडिया में कौन सा प्ले है? इस टाइप इंडिया में कौन सा प्ले है? नहीं, इंडिया में AI तो आ रहा है ना, तो AI क्या मॉडल्स डेवलप करेंगी कई कंपनियां, तो उसके अंदर करना तो चाहिए. अब नहीं हो रहा है वो. अभी इंडिया में AI का यूज हो रहा है, इंडिया में AI डेवलप नहीं हो रहा है कोई सा भी. एज ऑफ नाउ कोई AI डेवलप नहीं है. हाँ, अलबेला जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं अभी तक हमारे जो भी है ना स्टार्टअप एज पे ही है बहुत सारी. मैं इसीलिए ये बात से बता रहा हूँ. अलबेला आप मायामी में हो ना, तो उधर ही ढूंढना यार, इधर क्यों मगजमारी करता है? अरे नहीं सर, मैं इंडिया में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ ना. यहाँ की तो आपको पता है गेम कैसी है. यहाँ के तो बीट करना अलग ही गेम है यहाँ पे. तो इंडिया वाली गेम अभी नहीं है, तो उसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ कि एआई अपॉर्चुनिटी कौन सी है जो कि नेक्स्ट 5 साल में अच्छा रिटर्न दे दे. अलबेला अभी उसके लिए इसके लिए POCs चल रहे हैं, टेस्टिंग्स वगैरह सब चल रहे हैं. ये बहुत तो इंडिया में जो अभी तक पहुंच पाए हैं वो थोड़ा. क्या मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? नहीं अलबेला, मेरे पास में एक प्राइवेट कंपनी है
जो कि આપણે एआई का काम करती है, तो उसमें डालना 10 करोड़ रुपया। सर ऐसे तो इतने लग रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, जैसे एनवीडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर अरे रही है सब एआई के सब लिए। तू जो बोले वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरे पास, बोल और डालेगा पैसा। सर एक कंपनी में हाँ, अगर हार्डवेयर की है तो मैं डालूंगा, हार्डवेयर हाँ की है हाँ तो। हाँ हाँ, चलो जो भेजो, चेक भेजो। जो एनवीडिया जो इंडिया कल को मोदी जी बोल दे कि भाई हम बाहर का हार्डवेयर यूज नहीं करेंगे, एनवीडिया यूज नहीं करेंगे, एएमडी यूज नहीं करेंगे, हम इंडिया का हार्डवेयर यूज करेंगे, ऐसी कंपनी कौन सी है जो इंडिया कोई का सी भी नहीं है, अरे ऐसी अभी कंपनी नहीं है होगी भाई, भी नहीं अभी अभी नहीं तक। है, मेरे अभी नहीं पास है, एक आने वाली है प्राइवेट ना। लिमिटेड है, मेरे नहीं पास आएगी एक अभी। प्राइवेट लिमिटेड है, देखिए 10 करोड़ भेजो। देखो इसके, देखो मैं आई एम विक्रम। चेंज द टॉपिक प्लीज, नो मोर एनवीडिया तेल लगा रहे जा। शेयर बाजार का बात करो जो सबको समझ में आवे। आप लोग आपस में नंबर एक्सचेंज करो और जितना डिस्कस करना है करो। चलिए, हु इज नेक्स्ट? नमस्कार सर, प्रणाम, नरेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं लगभग 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप जनरली फार्मा के लिए इतने फार्मा रिकमेंडेशन आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती है। अल्केम में आपकी ऑफ लेट रिकमेंडेशन हुई है सर, कुछ बता पाएंगे क्या स्टोरी है? क्योंकि अभी तक आपने जितनी रिकमेंडेशन दी है सर ट्विटर वगैरह पे, लगभग मैंने जो देखा है, यू आर राइट, बैंग ऑन द टारगेट सर। मतलब हर चीज अच्छी रही है, इवन अप्स एंड डाउन में। अल्केम फार्मा में मैं 1 साल से लिटरली आपको देख रहा हूँ सर, फॉलो कर रहा हूँ। फार्मा में आप इतने नहीं थे सर, अल्केम आपने नहीं, फार्मा अगर एक मिनट है, एक मिनट, अगर आपने 2014-15 में सन फार्मा लिया होता 1200-1100 में, क्या मिला? घंटा मिला। लुपिन लिया होता 2000 में, एक्स बोनस हुआ, अभी 1200 है या जो भी है, तो क्या मिला? Pharma company, if you see worldwide, no, they are not good investing companies. They are good for the mankind. They have a social responsibility. तो अगर आप कोई भी उठा के देख लो, औरो फार्मा देख लो, तो कुछ मिलता नहीं है। वेरेज अल्केम वो लोकल में था, अब फॉरेन में भी चालू किया, बस यही स्टोरी है। और वो रोज नया हाई बनाता है, तो दैट्स। और एक बात बताओ, मेरे पास में कोई नॉलेज नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप पता है कि स्टॉक को कैसे देखने का। और दूसरी नहीं सर, सबसे बट सक्सेस रेट, हाँ बोलिए सर। सक्सेस रेट सॉलिड है सर आपका। 1 साल में जो देखा मैंने सर, तो मतलब कुछ इंसाइट तो है सर, नॉलेज तो है, ऐसे नहीं। नहीं, नॉलेज इन द सेंस आई हैव जनरल नॉलेज। आज आप यूबेक का मैं इतना बोलता हूँ, आप 2 सवाल पूछोगे, दूंगा आंसर। तीसरा सवाल का आंसर नहीं है मेरे पास में। जरूरी नहीं है कि इन्वेस्ट करने के लिए सब कुछ मालूम होना चाहिए। मोटा मोटी ठीक है, बहुत हो गए। और जितना होशियार ना उतना प्रॉब्लम होता है बाजार में। वो जी सर, थोड़ा अनाड़ी। हाँ बोलिए। टू मच ऑफ एनालिसिस बिकम पैरालिसिस सर। यस, बैंग ऑन। नहीं सर, मैं अल्केम से थोड़ा वाकिफ हूँ, तो आई बाय दैट, कुछ इंसाइट है तो। नहीं तो दीजिए ना, हमको दीजिए तो मुझे अगले भाषण में बोलने को काम आएगा। सर they are doing excellent biosimilar work, which is मैप्स में, बायोसिमिलर में they are one of the leader in India now सर। और उसकी जो वैल्यूएशन है सर, एक मॉलिक्यूल की बिलियंस डॉलर में है सर।
तो वो नलवर बायोसिमिलर किधर के से हो? प्ले पे चल रहा है सर वो। आप किधर से हो? अहमदाबाद सर, अच्छा, अहमदाबाद सर। तो if you don't mind, जी सर। will you give me a ring tomorrow? श्योर सर, श्योर। My number is on my profile. WhatsApp call. श्योर सर। Don't do normal call क्योंकि वो normal वो कुछ गड़बड़ है। और बताइए लोगों को अल्केम के बारे में, बायोसिमिलर देन। नहीं सर, बायोसिमिलर इज अ बिग प्ले, दैट्स अ मल्टीप्लायर सर। अब जैसे वो डेनोजुमेब है, रानीबिजुमेब है, उस्टेक्लुजिमेब है, प्रीडोमिनेंटली ऑन्कोलॉजी के मॉलिक्यूल हैं सर। यू नो वेस्टर्न कंट्रीज है मार्केट, स्पेशली यूएस इज अ मार्केट। एक एक मॉलिक्यूल का सेल सर 3-3, 4-4 बिलियन का सेल है। अगर वो 5-10%, 15%, 25% भी हिट करें सर, एंड दे विल बी, they are going to be first to file companies in some of the maps, may not be the all, but some of the molecules they will get the exclusivity. तो उसमें उनका मार्केट पेनिट्रेशन भी सर पहले 6 महीने में तो समझिए 100% जैसा रहेगा। हेलो जी सर। हाँ बोलिए ना, और बोलो, 2 मिनट और बोलो, चलो कुछ भी भाषण करो। नहीं कुछ भी भाषण नहीं सर। अरे सर करो ना मुझे यार। सर मुझे ये जानना था आपसे, तो आपने कौन सी इनसाइड ली सर अल्केम में सर? मतलब हाँ आपका क्लिक जो आपका जो वो जो कैच किया है ना सर आपने, मे भी भले आप जनरल जनरल बोले, आपने कुछ तो कैच किया है सर वहां पे। कैश क्या, एक सिंपल है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखा तो चौंका होना था। फिर मैं बोला ये देखिए मैनेजमेंट तो बढ़िया है, उतना मालूम है। जी फिर सर। अपना क्या अंगूठा छाप आदमी है, एक्स्ट्रापोलेट किया तो मेरे को लगा कि 20-30 हजार हो जाएगा, बस उतना मालूम है, ज्यादा नहीं मालूम है। सर ये कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है सर अभी इसकी। 58,000 मार्केट कैप कुछ भी नहीं है सर। नहीं, आई सेड 20-30,000। हाँ सर, बट राइट नाउ इट्स 58, अराउंड 55, 54, 58। अरे आई एम सेइंग It is रेट price. ऑफ द शेयर। हाँ जी सर, बट मैं बोल रहा हूँ सर ये मार्केट कैप 50K का भी कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है, जो जिस चीज पे वो जिस मॉलिक्यूल्स पे वो लोग काम कर रहे हैं सर, बिकॉज उसमें कोई एक्सपेंस नहीं है सर। जो पूरा सेल है वो पूरा प्रॉफिट ही है सर, अदर देन मार्केटिंग कॉस्ट। अब पॉलीकैब का मार्केट कैप 80,000 करोड़ है और नफा 300-400 करोड़ है। इसका 58 करोड़ है, अरे 58,000 करोड़ है, और प्रॉफिटेबिलिटी 650 करोड़ है ना। जी इंडिया सर। में बेवकूफों की जमात। और बिल्कुल। मजे की बात है, पॉलीकैब के वहां रेट गिरती है। एक्चुअली इट इज वेरी शेमफुल कि एक कॉर्पोरेट के वहां रेट गिरती है। लोग बोलते फंडामेंटल्स आर, अरे क्या क्या फंडामेंटल्स, बुक्स ही सब गलत है तो क्या। ये ये शेयर अगर यूएस में लिस्टेड हो है ना, 5500 का पहले ही दिन 2,000, और एक वीक में 50 रुपया। इंटीग्रिटी नाम की चीज इंडिया में है ही नहीं। साले सब बेवकूफ पीएमएस वाले इडियट्स, अगर बस चले तो ऐसी गालियां दूं उनको, क्या कर रहे हैं तुम लोग। इंडिया में 4-5% का ग्रोथ हमेशा रहा है और रहेगा। कोई भी अच्छी कंपनी उठा के ले लो, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन ये चोर उचके का कंपनी क्यों चलाते हैं, डिक्सन विक्सन, माय गॉड।
पब्लिक को उल्लू बनाते हैं। नरेश भाई, जी सर। कॉल मी टुमारो डेफिनेटली। जी सर, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। 150 करोड़ की जनसंख्या है सर, ये रोटी कपड़ा मकान भी खाएंगे तो 5% की ग्रोथ कहीं नहीं गई सर। 3 टाइम का खाना खाना है, उठना बैठना है, कपड़े उपड़े पहनने हैं सर। 4-5% की ग्रोथ तो कंजम्पशन बेस पे ऐसे हो जाएगी सर। थैंक यू सर, कल कॉल करता हूँ। ओके, नेक्स्ट। हाँ बोलिए भाई, डॉक्टर बोलो। थोड़ा मैं यहाँ पे ना नॉइस का इशू है, मे बी समवन एल्स कैन आस्क, देन आई विल आस्क लेटर। नमस्कार शरद सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर सचिन बोल रहा हूँ। सर पॉलीकैब का मैं तो स्टॉक्स में करता नहीं काम, तो आपका सुबह ट्वीट आया तो फिर मैं चार्ट खोल के देखा तो समझ आ रहा था शॉर्ट, तो शॉर्ट किया। अभी 100-150 पॉइंट प्रॉफिट में ही है। और वीकली चार्ट पे, मतलब वीकली थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो चार्ट के हिसाब से तो आज वीकली चार्ट पे सेल आया है, डेली पे तो है ही। और 4850 और 4500, 4600 सॉरी, ये दो मेरे को टारगेट लगते हैं। तो देखते हैं, 4600 तक जाना चाहिए। अरे 200 रुपया ही हो जाएगा वो। दो प्रॉब्लम ये है कि 200 तक हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप तो होल्ड कर लेंगे। तो एक लॉट करके देखना होल्ड। ठीक है सर, आपके कहने पे एक लॉट छोड़ दूंगा। और बताओ। बस सर सब बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक। बोलिए कौन है? हाँ जी सर। नहीं मैं बोला और कौन है? कमलेश कापड़िया। Yeah, good evening, Sharad bhai. गुड इवनिंग। Yeah, I would to know about Castrol. Can we add at this rates or we should wait for some consolidation? How many shares you want to buy? Depends. I can buy 1,000, 2,000 shares. Every day buy 50 shares. Okay. Is there any target that you are looking at, Sharad bhai? 15-16 हजार करोड़ मार्केट कैप है, अच्छा डिविडेंड है। Right. और बड़े नहीं तो अच्छा है। अच्छा। और डिविडेंड बहुत आएगा। हाँ वैसे मैं और होल्ड बढ़िया कंपनी है। हाँ पेरेंट जो है ना, ब्रिटिश पेट्रोलियम बढ़िया है, रखो यार। ओके या स्टॉक आइडियाज बोलिए। I think it's stock trader, chart analyst, please. श्रेयस जी। ना भाई
Yes. मुकुंद जी, हेलो। हाँ बेटू जी बोलिए। शरद सर, मेरे को थोड़ा IRCTC का जानना था। अभी मतलब एंट्री ले सकते हैं क्या इसमें? दास, हेलो। Chirag, you can hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. So, yeah, Kishore Waghela. Waghela. सर ये अभी बिट्टू जी ने IRCTC के बारे में पूछा है। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बिट्टू जी फिर से बोलिए आप। शरद सर, अभी IRCTC में पोजीशन बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, बनाओ। पोजीशन देखिए, शेयर बाजार में कभी भी आप पोजीशन बना सकते हो। अच्छा, ओके। लॉन्ग शॉट मालूम नहीं है, लेकिन बना सकते हो। ओके सर, मतलब लॉन्ग टर्म में सही रहेगा। अभी टारगेट सर क्या देखते हैं आप 2024 के एंड तक? 2024 के एंड तक 150 रुपया हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। हेलो। हाँ, बोलिए। हाय शरद सर। हाय। सर, एक्चुअली मैं आपके ना वो LNT के ऊपर आपने लास्ट पेज पे भी बोला था कि LNT ABB बाय करो, और ये आपने पॉलीकैप का भी बोला कि इंटीग्रिटी। सर, मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे वन ऑफ द आई वर्क इन PMS फ्रॉम लास्ट 2 years ओनली। मतलब मैं अभी ग्रेजुएट हुआ 2 साल पहले, और फिर अभी तो मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है। बट हम लोग मैनेजमेंट एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वी मीट मैनेजमेंट, एंड when we met management of L&T, we got to know कि L&T wanted to give exit to AM नायक। उनको अभी जब उनका रिटायरमेंट हुआ अभी एक साल पहले या 6 महीने पहले, तो दे वांटेड टू गिव हिम द एग्जिट, देयरफॉर दे ऑफलोडेड द शेयर्स एंड दे गिव द leadership to someone else. So sir, how do you, and also seeing the past of L&T has always good in infrastructure but never good into the different segment which they have मतलब जो नए सेगमेंट में गए, जेवी रीते ऑटोमेशन में वो लोग गए तो वो लोग फेल हो गए, वो लोग स्विच गेयर्स में गए वो लोग फेल हो गए। सो मैनी सेगमेंट्स दे हैव डाइल्यूटेड, वो लोग लिफ्ट्स में गए वो लोग फेल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली दे आर किंग, बट ये लास्ट 6 महीने में उनको ये मिडल ईस्ट वगैरह के और वो अल्जीरिया वो साइड के प्रोजेक्ट्स भी बहुत मिलने वाले थे, वो भी बहुत सारे रिजेक्शन है आफ्टर द AM नायक लीडरशिप गॉट चेंज। सो सर, हाउ डू यू लाइक जज मैनेजमेंट इंटीग्रिटी? मतलब सब अच्छा है, इतनी बड़ी पेडिग्री है। जैसे एक एग्जांपल मैं और भी दूंगा, लॉरस लैब। कोविड के टाइम पे जिसको पूछो वो लॉरस लैब में बात मत करना लॉरस लैब का बात मत करो। नहीं, उसका मैनेजमेंट भी चोर है, ऐसा मैं बोल रहा था। नहीं, डोंट टॉक अबाउट लॉरस। ओके, ठीक है। So what is your question? So sir, how do you judge management integrity if you don't check the मतलब आपने अभी बोला ना कि फाइनेंशियल। So are you saying लार्सन का मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है? सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कैसे चेक करते हो, ऐसे पूछ रहा हूँ कि वो लोग भी बहुत टाइम से परफॉर्म
नंबर वाइज कर रहे हैं, बट उनके बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट बंद भी हो गए, बहुत सारी जगह पे वो लोग ड्रास्टिकली फेल्ड हो गए। अरे बॉस, बिजनेसेस में उतार चढ़ाव आते हैं, तो इंटीग्रिटी इसमें किधर आ जाता है? अभी स्विच गियर का धंधा ही नहीं चलता है ज्यादा, तो इसमें इंटीग्रिटी किधर आ गया मैनेजमेंट का? और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई है ही नहीं। ये लार्सन पहले लगता था 5,000 होएगा, अब आप लोग का स्केप्टिसिज्म देख के लगता है ये 10-20 हजार हो जाएगा। And how do I am coming to your question. How do you analyze the management? आप 1-on-1 मीटिंग करते हो ना, तो कोई भी आदमी बोलेगा नहीं कि मैं खराब हूँ, ये हूँ। You will come to know only after interacting with outsiders, with suppliers. और मेरा सबसे बड़ा रीडिंग ऑफ मैनेजमेंट इज फ्रॉम द स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस से पता चलता है कि ये चोर आदमी है, ये डिक्सन वाला है, माँ की आंख, इतना चोर आदमी है, इतना चोर आदमी है, आप पूछो मत। निकलेगा घपला निकलेगा। हाँ भाई, और कुछ पूछना है भाई? थैंक यू सर। Yes, I just want to add something to your observation जो आपने कहा ना कि स्विच गियर में किया बंद हो गया, so this is not a sign of integrity, it's a sign of a management that is willing to experiment and enter into new business areas. No sir, my question was how do you judge integrity in the sense ki when sir suggested ki L&T ले लो, so I just wanted to like highlight ki sir might have analyzed many things based on his experience. I just wanted to see कि इतने सारे businesses भी बंद हो रहे हैं, तो then what perception do you keep to analyze a stock? My perception for L&T is also very good only. I just wanted to know his perception, nothing else. I was not countering anything about management or anything. अरे भाई, hello, if you counter me, I will like it. बोलो ना, argue करो ना मेरे साथ, अच्छा लगता है। एक बात भूल जाते हैं, इनका जो एमडी है और जो चेयरमैन है, इज नॉट अ शेयर, इज प्रोफेशनल, तो वो आप ध्यान में रखता हमेशा। और आपका ये में कोई क्या रहेगा? सर आपका आवाज कट रहा था, कैन यू प्लीज रिपीट इट? सॉरी, मतलब मैंने सुना नहीं। आपके पोर्टफोलियो में पोली है क्या? नो सर, वी डोंट होल्ड लार्ज कैप, हम लोग सिर्फ स्मॉल कैप्स, मिड कैप, माइक्रो कैप्स में, पॉली कैप वी डोंट इन्वेस्ट। कमोडिटीज रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, हम लोग नहीं डालते, मतलब अगर मेटल है। लार्ज वन इज अ स्मॉल कैप और व्हाट? No, sir, it was just an analysis. We do analyze large cap stock also, and we analyze overall all based on the result. But we invest majorly into micro caps and small caps. नया जो story मिलता है, नया perception, turnaround companies, we invest in those companies, sir. But we analyze everything related to markets and everything. But we give मतलब हम लोग आइडियाज, जो नए आइडियाज आते हैं छोटी कंपनीज में या स्मॉल कंपनीज में, हम लोग उस पे ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो एक दो तो बता यार।
हेलो यस सर सर कंट्रोल प्रिंट करके हेलो एक है इट्स अ वेरी यस यस सर कंट्रोल प्रिंट हाँ फिर आगे हाँ फिर कंट्रोल हाँ समझ कंट्रोल गया प्रिंट इज अ कंट्रोल प्रिंट सर आपने हाँ फिर रिस्पॉन्ड और नहीं किया ना दूसरा इसलिए केसीपी इज गुड नहीं दूसरा केसीपी is good sir KCP share at 145 KCP is really good then LG Balakrishna into is very good small cap company currently these are 3 top ideas for RPMS so this you can invest okay thank you welcome sir. और कोई है स्पीकर गुड इवनिंग सर नरेश भाई और कुछ बोलना है क्या आपको नहीं सर कल कॉल करता हूँ सर गुड इवनिंग सर Chirag, you have anything to say? No, sir, nothing apart from my usual refrain, which is follow the price, don't worry about the stories. If you're hearing the story, it's probably too late. hello शरद सर सर હું એક પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછું સર normal છે sir you are the one who used to manage treasuries like 10-15 years back you are that Sharad Shah sir for 2 or okay sorry sir thank you गुड इवनिंग सर एम आई ऑडिबल सर हेलो भालूराम with 0 follower बोलो निकाल दिया उसको वेरी गुड समर जी कुछ बोल रहे थे गुड इवनिंग सर सुना ही नहीं दिया है सर एम आई ऑडिबल हेलो भैया आपकी आवाज शायद सर को नहीं आ रही है मैं वापस बाहर जाके वापस आ गया अभी भी नहीं आ रही है एक बार ऐप किल करके आइए वापस ठीक है आता हूँ वापस नूबी ट्रेडर बोलिए Yeah, hi. So we talked last time. I think it was in the golden eye space.
And I do believe that we have like a lot of bull run left. And I obviously know that you don't believe it. But the thing is, the price action and everything is telling that, yeah, we have like a lot of space left. Yeah, we can go back to like 21,200, 21, and let's say 20,000. But uh, everything is telling that we have a lot of bull run left. Yeah, there are like a lot of companies that are like fraud. They can jump up their prices, but there are like a lot of opportunities left that we can still counter. So, so should we like stay invested or like get off? Yeah, that is my question. If the companies are good, stay invested. Okay. See, see, I don't know how you sort of trade. If you're trading on fundamentals, right? So then you will have some idea of companies' growth prospects, right? And so keeping that in mind, you will stay invested. You will have some sense So of. I only trade only on the basis of technical analysis. And so then that's fine. That's even simpler. Then you have an exit strategy. If it hits your exit Yeah. number, you exit. Yeah. Technical trading is the simplest. There it's a rule based, right? You Yep. follow charts and you have rules. You have a rule for entry, you have a rule for exit. How does Yep. it matter if Nifty is at 12,000, 10,000, 20,000, 30,000, or 100,000? No, it matters because in the bull market, even as Sarsa said, like the fraud company can give you like good returns. But in the bear market, everyone. No, but even in a bear market, technicals will help you. No, you may get lesser returns, but you will have an exit strategy, right? Yep. So if it hits your stop loss or trailing stop loss, you exit. It's as simple as that. I'm not sure why. See, I don't understand why traders ask this question. I mean, you are obviously rule based, right? It's not like you are listening to somebody and saying, I'm going to put in money here. So if you're rule based, you have an entry, you have an exit, you have a stop No, loss. no, the people like Sarsha who have been in the market for like 10, 15, who were in the market for like 20, 30 years, their perspective matters. It's like you're listening to I don't know, like the big guys, and their perspective do matters. And obviously, they have their view, and I have my view, and I have my strategy. But still, their view, I still remember when Bill Ackman called that they want to exit their shorts in the US Treasury bonds. And trust me, that was the day the US Treasury made a bottom. So, same. Right. Same. Yeah. So, yeah. I didn't get it. Okay. Sharad, you're not audible. Your voice is breaking. Asking with how many opportunities? So I trade with sometimes with the maximum of the quantity that NSE permits 100 lots, 200 lots, and sometimes with 500 lots, 1,000 lots. But I only trade the index. I never traded any stocks in my life. Till I have been to this market for past 10 years.
but I have never traded a single stock. We can't hear you, Sharad ji. Noob trader needs to mute himself so that there will be no echo. You can hear me? Yeah, I can hear you. I can hear you. Now we take good this side. बोलो बोलने के राजेश जी बोलिए, राजेश चौधरी. समर जी आपकी बारी. Good evening, sir. Good evening, Chirag ji. Good evening. Sharad ji, you Sharad can sir. hear Samar ji. Hello, Sharad sir. नहीं सुन पा रहे. Anyway, आप बोलिए ना. Yeah. Yeah, actually, Chirag ji, nothing to add. But the way today, if you ask me about the Nifty index, it was behaving very abruptly. The price action was not comfortable. I think, Chirag ji, I need to move out and clean the cache memory and we'll move it again. हाँ शायद वही होगा. शायद एक बार ट्राई कर लीजिए सर, वो भी ट्राई कर लीजिए. या अभिमन्यु जी बोलिए. शरद सर 12,000 कब आने वाला है? निकाला क्या उसको? मैंने निकाल दिया. अरे क्यों निकाला यार? इतना अच्छा एटेंड मिलता है. वेस्ट ऑफ टाइम. क्या नाम था? सर अभिमन्यु था. He is 22 years old. As per his profile. अभी I think he has to lose some money before he can ask. बोलिए. अभी तो कोई नहीं है सर. अभी अमर जी आने वाले हैं शायद वापस. Anybody else who wants to come up? यश आप भी बोल लो. अभिषेक आपसे बड़े दिनों में सुना नहीं. अच्छा सर, मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ नहीं है. गुड इवनिंग सर. गोल्ड पे मेरे पास लॉन्ग पोजीशन थी, वो मैंने ऑलमोस्ट 70-80% वो आज स्क्वायर ऑफ कर दिए. मुझे लग रहा है ब्रेकआउट फेलियर है वो. पॉली कैप का है. अभी अगर कुछ 10% गिर जाएगा तो उसके बाद आई थिंक मैं उसको तब शॉर्ट करना पसंद करूंगा. अभी तो नहीं. मत कीजिएगा ना. और डोंट शॉर्ट. तकलीफ होगी. India is a long only market.
सर पर लॉन्ग तो हो नहीं पाते ना सर। सर पॉलीकैप जैसे स्टॉक को लॉन्ग करने से अच्छा मैं यूएस के अंदर जो एक कंपनी है एनकोर वायर उसको लॉन्ग कर लूँ सर। वो इससे 4 टाइम्स कम वैल्यूएशन पे है और 8 पी पे चल रहा है और 5 टाइम्स उसके सेल्स है इससे, एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी ऑल्सो। तार अगर लेना है तो मैं वहाँ पे जाके अच्छी क्वालिटी का लूंगा फिर। नहीं तो फिर वहाँ पर तार की कंपनी की वैल्यू सबको पता है ना। नहीं बट सर ऐसा है ना चिराग सर, अगर तार अगर लेना बहुत मजबूरी है मेरी कि मेरे को लेना ही है अभी तो मैं मतलब कैनन में इन्वेस्ट करने का रूट ढूंढ रहा हूँ कि मैं कैनन में कैसे इन्वेस्ट कर सकूंगा, क्योंकि अभी कैनन जो है वो ASML जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको compete करने के लिए कुछ एक टेक्नोलॉजी वो वर्क कर रहे हैं, तो वो सक्सेस उनको मिल चुका है। तो आई थिंक वो आगे फ्यूचर में जितनी भी चिप्स होती है उनके फेस चेंजर रहेंगे। आई डोंट नो अबाउट दैट बट मैंने बोला था ना BSC का प्लेटफॉर्म है INX, वहाँ से आप कर लो। पता नहीं मेरा अकाउंट उसमें हो नहीं पा रहा था ओपन, या उनका पता नहीं क्या सिस्टम है। हाँ बड़ा वियर्ड सा सिस्टम है। आपको पहले मेल करना पड़ता है, फिर वो आपको लिंक भेजेंगे, फिर साइन अप है, बड़ा वो है। बट वंस यू आर ऑन सो यू नो सम 70-80 मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। सर्वेंद्र भाई आया है, इनवाइट भेजो उसको। मैंने करा है सेंड। गोल्डन आई कुछ बोलो। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Actually, sir, nothing to add, but frontline stocks में there is just rotation of money which is happening. एक दिन IT up रखेंगे, तो Reliance और HDFC Bank were down today. तो अगर सही घोड़े पे बैठे हो तो ही कमा पाओगे, but if you are riding the wrong horse, there will be too much issue, sir. और आज के दिन में जिस तरह से वॉल्यूम था निफ्टी में, there was some, I was just feeling uncomfortable about the index as such. बाकी तो सर there was sell off, धीरे-धीरे sell off ही हो रहा था फ्रंट लाइन इक्विटीज में, and I cannot deny कि भाई index can go up to 2800 in the short term. 20,000 जा सकता है। 20,000 हाँ 20,000 से 2800 के भाई। Sir, any view on Everest Industries? Everest Industries. मार्केट कैप कितना है भाई? 1200 करोड़। श्रेयस भाई उसका पुराना नाम क्या था? नहीं, पहले से ही नाम एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ही है सर। नहीं एटर्निट एवरेस्ट था। ओके, देख लेंगे आप। नहीं ठीक है यार, एकदम अच्छा है, रखो। कम नहीं अच्छा है सर। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मेरे को ही नहीं हो रहा है या सबको नहीं आ रहा है बस शायद? He is saying good company. Okay sir. Price I don't know. It might go up or go down. Okay છે. સમજ એને કે કંપની બહુ સરસ છે, ઉપર બી જઈ શકે છે, નીચે બી જઈ શકે છે. સર સંભળાતું નહોતું ને સર, એટલે સોરી સર વોઇસ ઇકો થાય છે. હા, બે મોબાઈલ ચાલુ છે. હવે નહીં થશે. Still an echo.
Sir, too much echo is coming, sir. एक मिनट, दास, just a moment. ये जल्दी अंदर रख के रख दो. हाँ, अबे नहीं आवे. आपका कोठा में. अरे रखना. हेलो. ये Yes, sir. आपने आवाज आवे छे. Yes, sir. Now proper, sir. हाँ, वो 2 फोन साथ में थे इसके लिए. नहीं, ये सब बाजार तो ठीक है यार. ये पॉलीकैब के बारे में क्या विचार है तेरे? Sir, real selling has not started now. अभी ये तो न्यूज बेस्ड था सर आज के दिन में तो. बट एक मिनट मैं आपको बताता हूँ. रियल सेलिंग विल स्टार्ट बिलो 4850. एग्जैक्टली सर. वो ठीक है यार, वो सब नंबर 4800 4850. और मेजर सेल ऑफ मजा आएगा 3500 के नीचे. नहीं. और अभी ये क्या होएगा, ये अगला रिजल्ट आएगा ना, नफा ही नहीं होगा. देख लेना. 40 साल का एक्सपीरियंस है. रेड के बाद नफा आता ही नहीं है. बल्ले बल्ले. सर्वेंद्र भाई किधर हो? इधर ही हूँ शरद भाई. कहाँ जाऊंगा, यही हूँ. बोलिए. नहीं, अब ये जिस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है आज मार्केट में, जैसे 100 पॉइंट के मूव निफ्टी में हर आधे घंटे पे ऊपर नीचे आ रहे थे. आई थिंक ये तो समवन इज क्लियरली सेटिंग अप द ट्रेडिंग मतलब उसको कहीं तो इसको देखना पड़ेगा. आई थिंक आई डोंट नो ऐसे 100 पॉइंट प्लस माइनस कैसे होता है बाजार 15-20 मिनट में, ये तो देखना चाहिए. बट एक्सचेंज वाले और सेबी वालों का काम है, वो लोग देखेंगे. बट आई थॉट इट वेरी ऑड जिस तरह से आज सडनली ऊपर नीचे होने लगा. तो वैसे भी बाजार तो बहुत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बट ठीक है, अभी ये जो रिसेंट लो रखा 20,100 के आसपास, आई थिंक वो क्रिटिकल है. जैसे फ्रॉम द लेवल साइड कि भाई इसके नीचे गया तो फिर तकलीफ. नहीं तो जब तक उसके ऊपर है तब तक, जैसे सामर्थ बोल रहे थे कि हाँ भाई 20,850 तक जा सकता है. तो मेरा भी थॉट वही है कि भाई अगर टिका है इधर, और यूजुअली दिसंबर सेकेंड हाफ में ज्यादा बड़े फॉल आते नहीं है यूजुअली, क्योंकि खाली लोकल लोग रहते हैं, गोरा तो रहता नहीं है उतना एक्टिव. तो अरे आज गोरे का फिगर लोकल से ज्यादा था सेलिंग में. क्या? अरे आप भी क्या यार, छोटी. कम ऑन यार. आज न्यूज बेस्ड भी है. आज का तो न्यूज बेस्ड भी है. अभी एक के पीछे अभी देखो अभी और कहाँ पड़ती है रेट. बट एक आध दो नाम जो आए हैं वो तो ठीक है अभी तो. नहीं, मैं बोल रहा था कि एफआई छुट्टी ऐसा कुछ नहीं होता यार. नहीं, मतलब आई एग्री 100% छुट्टी तो कभी नहीं होती. आदमी तो फोन पे अब तो रहता ही है. और पहले 20 एफआईआर होती थी. करेक्ट. अभी कितनी है यार, छोड़ो ना यार. अब उसमें कितने करेक्ट. नहीं, बट भाई मार्केट के सेंस में तो मार्केट काफी ओवरबॉट है. बट जब तक 20-100 पे टिका है तब तक एक बार 20,800-850 गया तो गया, नहीं गया तो फिर नहीं गया, वो तो देखेंगे. बट नहीं गया तो नहीं गया. क्या अपने बाप का क्या गया. हाँ करेक्ट. सेकंड हाफ अभी देखिए रिलायंस एचडीएफसी में जगह है, और यूजुअली दिसंबर सेकंड हाफ में उतना गिरता नहीं है. और जो भी बड़े टॉप बने हैं सारे जनवरी के बने हैं. मतलब यूजुअली टॉप जाके फिर जब जनवरी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक या लास्ट वीक में सारे टॉप बने हैं. चाहे 18 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 2008 का हो, चाहे 2010 का हो. तो आई थिंक अगर हिस्टोरिकली जाके देखते हैं तो टिपिकली बाजार जनवरी इज द मंथ टू बी अलर्ट. तो अगर अलर्ट रहना है तो जनवरी में रहना है, और जो होना है जनवरी में ही होगा. नॉट दैट कि उसके पहले नहीं हो सकता है, बट यूजुअली बड़े टॉप सारे जनवरी में ही बने. और वो भी जनवरी आप देखो तो इवन ईयर की जो साइकिल होती है उसमें जनवरी इवन ईयर में सबसे बड़े टॉप 2008, 18 और 2020 ये सारे टॉप जनवरी के हैं, इवन ईयर टॉप्स हैं. और सारे बड़े जो बड़े फॉल आए इंडिया के वो सारे वही हैं. और इनफैक्ट इंक्लूडिंग द Y2K बबल, दैट आल्सो आई थिंक 2000 also was a January top, and 2004 also
was a January top, January Feb top. So I think 4-5 जो bear market बड़े मुझे याद हैं, Y2K bubble 2008, 2018 mid cap top and 2020 कोविड टॉप, ये सारे जनवरी के टॉप हैं. तो जनवरी में बहुत अलर्ट रहना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. इसमें तो मेरे दिमाग में कभी डाउट रहा ही नहीं कि इवन ईयर जनवरी में हमेशा अलर्ट रहना है. अगर एक्सीडेंट होता है तो वहीं से होता है. So you get, so moral of the story is that you will get the smallest stop loss from a technical trader point of view. जनवरी में अगर आपने टॉप पकड़ लिया फाइन ट्यून करके, जो भी आपने इंट्राडे चार्ट्स और ये सब लगा लोगों के, अगर आपने जनवरी का टॉप फाइन ट्यून करके पकड़ लिया, चाहे वो फर्स्ट वीक में हो या 2018 के जैसे लास्ट वीक में हो, बट अगर जनवरी में आप श्योरली एक कहीं इतने अच्छा माथे मार दिया है और अगर आपने उसको बढ़िया पकड़ा है, तो वो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकता है. सो यू हैव टू बी अलर्ट टू कैच द टॉप इफ एट ऑल इट्स हैपनिंग इन जनवरी ऑफ द इवन ईयर. ऐसा तो नहीं है कि हर साल में हर बार हो जाता है, बट इतना रेपिटेटिव है कि अलर्ट रहने में कोई नुकसान नहीं है. और जनवरी का टॉप अगर अच्छे से पकड़ लिया तो स्टॉप लॉस लगा के हाई पे बैठ जाओ, सो जाओ, पोजीशन लेके शॉर्ट की, पैसे अच्छे बन जाएंगे. सो इसके लिए उस एंगल से सविंदर जी, लॉन्ग शॉट को गोली मारो. आई एम सेइंग अभी इतना दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. सबको मालूम है अच्छे शेयर्स कौन से हैं और बुरे शेयर्स कौन से हैं. करेक्ट. पब्लिक स्मार्ट हो गई है. Now, if you start investing now, say I want to start investing now, and I buy all the shares that I have listed as good shares according to me. करेक्ट. तो निफ्टी 12,000 भी हो जाएगा, ये 4 गुना 10 गुना हो जाएगा सर. फेयर ना सर. बेयर मार्केट में भी देयर इज अ 10% यूनिवर्स जो बेयर मार्केट में भी परफॉर्म करता है और देयर इज अ 10% यूनिवर्स जो बुल मार्केट में भी अंडर परफॉर्म करता है. तो 10 स्टॉक्स तो रहेंगे ही आउट ऑफ 100. अगर आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो सही, जैसे अभी सामर्थ बोल रहे थे समझ कि भाई आप सही घोड़ा पकड़ लेते हो, तो फिर सही घोड़ा पकड़ा है तो फिर किसी भी मार्केट में कोई टेंशन नहीं है. बट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी साइड, देखिए मैं हमेशा वही बोलता हूँ, फिर वही रिपीट करता हूँ कि भाई बुल मार्केट में आपके आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड डाल दिया गया. हम तो टेक्निकल ट्रेडर है, हमारी आंखों पे अगर ब्लाइंड फोल्ड डाल दिया गया और हमको 2 ड्रम पकड़ा दिए गए, एक ड्रम जिसमें 90 हरी बॉल है और 10 रेड बॉल्स है, और दूसरा ड्रम जिसमें जो रेड ड्रम है जिसमें 90 लाल बॉल है और 10 हरी बॉल है. इन ड्रम को अगर ठीक से मैंने चला दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, तो अगर आपको आंख में पट्टी बांध करके 10 बॉल निकालने बोलेंगे ना, तो बुल मार्केट में आप 9 ग्रीन बॉल और 1 रेड बॉल निकालोगे, एंड वाइसा वर्सा बेयर मार्केट में आप 9 रेड बॉल और 1 ग्रीन बॉल निकालोगे. सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको समझना चाहिए कि मार्केट कौन सा ड्रम है. उस समय आप पिकिंग करोगे तो आपको, क्योंकि ये पिकिंग तो रैंडम, किसी भी कोई फंडामेंटल वाला भी हो या वॉरेन बुफे साहब खुद भी हो, nobody can guarantee 100%. So you have to just choose the right drum. And this I'm talking in all the time frame. जो शॉर्ट टर्म है वो अपने शॉर्ट टर्म ड्रम लगा ले, जो मीडियम टर्म है वो मीडियम टर्म सोचे, जो लॉन्ग टर्म है हमारे जैसा जो 12-18 महीने प्लस सोचता है वो उस एंगल से सोचे कि भाई आप रिस्क रिवॉर्ड क्या है और लगता क्या है. सो आप सिनेरियो डिसाइड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके 8-9 ट्रेड सही हो जाएंगे और 1-2 में स्टॉप लॉस हो जाएगा. सो इट डज नॉट मैटर कि इट्स अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट. व्हाट इट मैटर्स इज कि जी, ये अमित भाई का स्पेस पे था वो सीटीसी वाले. उधर एक बंदा बोलता है कि मैं वॉल्यूम देख के करता हूँ. मेरे को इतना हंसी आया. वॉल्यूम तो फेक वॉल्यूम है, 90% फेक वॉल्यूम है सर. ऐसे ही तो फॉल्स गुरु लोग ही तो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं. वॉल्यूम देख के कौन ट्रेड करता है? वॉल्यूम आप किसी क्रिटिकल पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करते हो, बट वॉल्यूम तो कुछ भी बनाया जा सकता है. और निफ्टी में वॉल्यूम है ही क्या? 90-95% तो इंट्राडे ट्रेडिंग है, 5-10% तो डिलीवरी कैरी होती है, उससे ज्यादा तो कुछ होती नहीं है. तो पूरी मैं 10 करोड़ शेयर की भी कैंडल बना दूं और बाकी सारा उसमें 9-9.5 करोड़ शेयर इंट्राडे हो, तो उससे आप क्या निकालोगे? मुझे नहीं समझ में आता. बट या इम्पोर्टेंट की लेवल्स पे वॉल्यूम, जहाँ पे की लेवल पे ब्रेकआउट पिवट पॉइंट्स पे जो लेवल है वहां पे आप वॉल्यूम थोड़ा बहुत वॉच करते हो तो अच्छी बात है. बट देन यू नीड टू नो कि वॉल्यूम कंसिस्टेंट रहे. उसके बाद देयर हैज टू बी अ पैटर्न इन द वॉल्यूम आल्सो. एक स्टैंड अलोन वॉल्यूम देख के तो कुछ नहीं, अगर वॉल्यूम में आप कुछ पैटर्न ढूंढ पाए तो अच्छी बात है. एक रात को स्पेस होता है वो कुणाल भाई या अंकित भाई का, उसमें अच्छा स्टॉक डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं. ऐसा तो मैं देखता ही नहीं. सब एक कैंडल वो कैंडल, अरे कैंडल कितना चाहिए उतना मिलता है बाजार में यार.
क्या कैंडल मेन बात है अभी सर हम तो कैंडल वाले ही हैं, नहीं द पॉइंट द पॉइंट हाथों क्या उखाड़ लिया। चलिए नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम उसी में देख लेते हैं कि भाई स्टॉक 2-3 चीजें आप खाली मोटा मोटी देख सकते हो कि भाई मैनेजमेंट अच्छा है, स्टॉक अच्छा रहा है हिस्टोरिकली, और सर्किट डाउन वाला स्टॉक नहीं है, बस सर्किट डाउन वाला नहीं है और मैनेजमेंट थोड़ा ठीक ठाक है, तो बाकी तो फिर वॉल्यूम है तो आप ट्रेड करके निकल जाओगे, स्टॉप लॉस टारगेट करके निकल जाओगे, फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सब और सुनने वालों के लिए, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मत देखो, leave it to the professionals. Don't look at it. I also don't look at it. I also don't play. अपना असली पैसा बनता है स्टॉक्स में। मेरा असली पैसा बनता है स्टॉक बेचने में, आपका नहीं बनेगा। और मेरा बहुत ही असली पैसा बनता है स्टॉक लेने में। तो वही ध्यान रखो ना सर, आप लोग को 2-3 स्टॉक साल का मिल गया, आपके तो न्यारे हो गए। क्यों मगजमारी करते हो? 12,000 अरे होगा 12,000 क्या 6,000 भी हो जाएगा, चलना। द पॉइंट इज प्लीज थापा प्लीज don't indulge in speculation. Leave it to the professionals. Just invest. And if you have a bent, a slightly devilish mind like mine, no, mine is much more devilish. Try shorting. आप अगर अच्छे आदमी हो, आपका सब कुछ अच्छा है, तो शॉर्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मेरा तो बचपन बहुत तकलीफ वाला था, तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, चिड़ा हुआ हूँ, and it develops like that. So shorting doesn't come to you naturally, please. It's a very difficult job. अगर मैं आपको बोल दूं कि ये बेच दो, आप बोले यार मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, मैं कैसे बेचूं? वही सवाल होता है सबके पास। सो लिख के रखो, ट्रेडिंग में 2-3% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी सब लॉस करते हैं। Stick to investments. Super investments are there. ये super investments है, your pencil market and writing instrument market is 8,500 crores, 8,500 crores. And market cap of DOMS, a pencil maker, is 8,500 crores. वाह, क्या इंडिया है, मस्त है। हाँ समझ रहे, बोलो। नहीं आई सेड सर एक्चुअली वो रिपीट भी कर रहा हूँ, लास्ट स्पेस में कई स्पेस में बोला है एसएमई आईपीओ के बारे में। तो जिस तरह से अभी ऑल इंडिया में रेड पड़ा है इन माय सिटी आल्सो कि एसएमई आईपीओज आर टोटली रिग्ड, यानी मेनी आईपीओज, नॉट ऑल, मेनी आईपीओज। और अभी लिक्विडिटी का इश्यू जब आएगा ना, तब आपके पास होगा तो भी नहीं बेच पाओगे। यानी 40 रुपए की चीज 1,000-1,500 रुपए होती है विदाउट एनी रीजन, without any sufficient fluidity in the stocks also. Total number of investors सर 200, 300, 400 होते हैं एसएमई में, आईपीओ में, और 100 रुपए में लिस्टिंग होता है एंड इट गोज अवे अप टिल 700, 750 तक गया है एक स्टॉक, कई स्टॉक है ने। तो वहां से थोड़ा दूर रहो बस, वहां पर पैसा सबको दिखता है, बट जब आप सेल करना जाओगे ना, तब आपके वो बिकेगा नहीं कोई स्टॉक, वहां पर प्रॉब्लम है सर। लिक्विडिटी नहीं है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ही कम है सर। नहीं वो तो ठीक बात है, आज तक मैं देखा नहीं है ऐसे में। लेकिन ये जो न्यू इश्यू आ रहे हैं ना,
प्लीज मत डालना पैसा, मत डालना। मेरे कहने पे अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए करते हो कर लो, लेकिन एक अगर घर जमा हो जाएगा ना, अब प्रॉब्लम हो जाएगा। न्यू इश्यू के अलावा लिस्टेड स्पेस में इतने सारे अच्छे शेयर मिलते हैं, तो आप उधर क्यों जाते हो? धर्मेंद्र भाई बोलिए, आपको अभी ये क्या लगता है? और पॉलीकैप और रेट गिरा वो क्या? नहीं, शरद भाई स्टॉक्स पे तो नहीं बोल पाऊंगा, माफी चाहूंगा, बट जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि एक मिनट, आप स्टॉक्स के बारे में नहीं बोल पाओगे, अग्रीड, लेकिन व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ company on whom a raid has taken place? Does it show what? The management is good, bad, ugly? सब देखिए, अब ये तो till real data comes and the proof of the pudding is in the eating, तो थोड़ा क्लैरिटी आए कि क्या है क्या नहीं है, till you don't. नहीं, You can't call anybody guilty just because of a raid, but yeah. नहीं, पॉलीकैप को भूल जाओ आप. I am not talking about polycap. I am talking of a company on whom raid has taken place, or various companies on whom raid has taken place. What do you feel of those companies? देखिए सर, अगर वन ऑफ फर्स्ट ऑफ है, पहली बार है, तो आदमी को सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई कंपनी है जो रेगुलरली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फंसती रही है और कुछ ना कुछ करती रही है, वहां पे आप फिर भी सोच सकते हो, बट या तो टिल प्रूवन गिल्टी, मैं किसी को गिल्टी तो नहीं बोलूंगा, बट किसी का रेगुलर ऑफेंडर है तो यस, वो तो ऑटोमेटिकली मालूम चल जाता है कि मैनेजमेंट चोर है। आई विल क्लैरिफाई। नॉर्मली सर्च होता है कि छानबीन करते हैं, और एक होता है रेड। रेड में आते हैं ना, वो पूरा एविडेंस लेके आते हैं। So if a company is raided, I said, what do you think of it? सर देखिए, there is no smoke without fire, तो कुछ तो होगा ही, मतलब ऐसे ही तो आईटी वाला पहुंच नहीं जाएगा, तो there has to be something. सर मेरे वहां 2 बार रेड पड़ा, बराबर है। एक टाइम इतना एडवांस डिटेक्शन टूल्स नहीं थे उनके पास में। ये 2013 में माय फोन वाज अंडर सर्वेलेंस, माय वाइफ फोन वाज अंडर सर्वेलेंस। फिर वो ऑफिसर मेरे को बोलता है, तुम रोज शाम को निकलता था 7 बजे और नीचे जाके 5 मिनट में कोई लड़की को फोन करता था, वो बता दूं क्या? मैं बोला पागल, बता दे जा। तो वो मेरी वाइफ को बोला कि ऐसा है, तो वो बोलता है वो मेरे को ही करता था। मतलब इतना निगरानी रखते हैं लोग। ऐसे ही थोड़ी होता है कि आज मन किया चलो सर्वेंद्र भाई के वहां रेड करे। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस, बहुत प्रूफ देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं होता है कभी। और सर जनरली ये जो रेड्स अभी है ना, जहां पर भी रेड्स होती है ना, प्रॉब्लम उनका मोडस ऑपरेंडी एक सेम ही है। उनका एक ऑफिस होता है, एक सेंटर, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात के अहमदाबाद में, देयर अदर ऑफिसेस विल बी देयर इन अदर स्टेट। तो जो आईजीएसटी का जो बेनिफिट है ना, दे ऑलवेज अवेल, यानी उनकी एक ऑफिस दूसरी ऑफिस को माल भेजेगी, फिर वापस वो दूसरी ऑफिस वापस वो अहमदाबाद में वापस वो माल रिसफल करेगी। तो इन्वेंट्री का जो मूवमेंट है ना, वहां पर दे क्लेम बोगस बिलिंग के हिसाब से, दे क्लेम आईजीएसटी क्लेम रिफंड्स। दिस इज द मेन रीजन फॉर जो जितने रेट्स अभी हुए हैं लास्ट में, पॉलीकैप का रीजन नहीं पता है, बट दिस आर द जनरलाइज्ड रीजंस फॉर आईटी रेट्स एंड जीएसटी रेट्स सर। नहीं, वो तुम जो बोल रहे हो ना, वो जीएसटी रेट है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। नहीं एग्रीड सर, बट दिस यानी कैस्केडिंग इफेक्ट तो वहां पर भी आएगा ना सर। जब जीएसटी में कोई भी इश्यू होगा तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स में भी वो दैट विल बी एग्रीगेटेड सर, दैट अमाउंट। ठीक है, चलो।
दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। ऐसे तो बहुत सारा रेड होता है, अल्फेमा का भी रेड होता है। नहीं बट सर जीएसटी का तो रेट नहीं था ये, बट जीएसटी के रेट में तो नॉन बोलेबल ऑफेंस है, तो अरे वो जीएसटी का है ना, मैक्सिमम 3 महीने में छूट जाते हैं। छोड़ना यार, काय को अपने इनकम टैक्स का बात करते हैं तो क्यों जीएसटी को लाता है बीच में? हेलो, यस सर, यस सर, हाँ छोड़ना, जावा देना। और बोलो और कोई? हाँ आनंद भाई, चलिए निफ्टी पकड़ चालू करो। माइक इज योर्स फॉर 10 मिनट्स। क्या सर बोला था 21-22 को, 20-21-22 अराउंड 21st we will have a top. We had the top. The top is in place. Now the bottom is expected around 17th of May. तब तक ये ऊपर नीचे करता 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 वापस ले जाएगा आपको 14,200 तक वापस। अब 12,000 भी जा सकता है once it reaches, but that is my target अभी। So as expected आया है। These 2 days are not very important, और वैसे भी ज्यादा अटेंशन पे करना नहीं चाहिए मार्केट को। अभी जो भी करे नेक्स्ट वीक इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वी हैव टू लुक एट द मार्केट फ्रॉम January 3rd onwards, 3rd 4th के बाद में the actual effect will start from there. The decline yesterday, day before was very clear. वहां से क्यों आया, कहाँ से आया, सेलिंग किसने किया, क्या हुआ, किसी को पता नहीं था उस जब हुआ था। Now you have many other reasons, पर reason अभी भी बाद में आता है। This is not the reason why the market has fallen. Nobody knows the reason. अब जाएगा। Most probably I am expecting Dow to close in the negative today by evening, so which should put pressure on Tuesday, but immaterial है actually। After वो इतना लंबा रेड बार बनाने के बाद ये फिर से वापस नीचे जाएगा। दैट इज द ओनली वन। एंड बिकॉज टाइम जैसे बोला था टाइम पे, उसी टाइम पे आया, सो दिस डिक्लाइन विल कैरी मोर इफेक्ट। वी हैव रिट्रेस्ड exactly 66% of the total fall of day before from the high to the low, so which is again perfect. 2/3 correction of the entire fall, and market is ready for one more plunge to the downside. अब स्पीड पकड़ना चाहिए नेक्स्ट डाउन साइड से। ये जो 300-400 पॉइंट, 250 पॉइंट जो निफ्टी दिखाया, 600 पॉइंट एक दिन में ऊपर से नीचे 500 पॉइंट आया, इसका डबल ट्रिपलिंग भी हो सकता है। तो वेरी सून मे बी जनवरी वी विल सी सम डीप करेक्शंस। 1,000-1,200 पॉइंट एक ही दिन में गिरने का संभावना ज्यादा लगता है 12 जनवरी के बाद। लेट अस सी, दैट इज माय व्यू राइट नाउ। Most of the stocks are done. There was still Reliance and a couple of them which had to do, जो उन्होंने भी बनाया। अब बचा एक हाथ दो है छोटे छोटे। Once they finish their pattern, the entire Nifty basket, 50 basket is ready to collapse. So be careful. That is all. और कुछ नहीं, बाकी पूछो तो बोलो। Market has unfolded exactly as expected. I'm done. सर 6 मिनट और है सर बोलने को। बस शॉर्ट एंड स्वीट, लंबा लंबा बात करके कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। नहीं, शॉर्ट टर्म में सर जी नेक्स्ट वीक यानी मंथ एंड तक क्या कहा आपको लगता है निफ्टी? मंथ एंड कोई वैल्यू है क्या? बिकॉज स्पेशली क्रिसमस है एंड न्यू ईयर है, तो ईयरली क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी यही, मेरे हिसाब से यही पे 21,500, 21,400, 21,000 के बीच में ही क्लोज होना चाहिए। ओके, नया है नहीं बनाना चाहिए, नया लो नहीं बनाना चाहिए। इवन बनाएगा भी तो आई एम लुकिंग एट 20,750। नहीं समर बहुत लंबा लंबा है समर। हाँ सर एक्सपायरी ये આપણે 28 दिसंबर को है,
Yes, sir. 29th will be the last working day. Agreed. And it is a quarterly closing, तो ramping up जोर में होगा. Agreed, sir. इसीलिए बोला ये अब ये वीक को अटेंशन, डोंट पे अटेंशन. बस इतना वार्निंग दे सकता हूँ, तेजी में मत रहना, बिकॉज ये कहाँ घूमेगा किसी को नहीं मालूम, और जिस दिन घूमेगा वो सडनली मॉर्निंग में ही खुलेगा भयंकर नीचे. लाइक आई सेड लास्ट वीक जो बोला था 2620 2640 तक रिलायंस जा सकता है, बस वही दो चार थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो कितना खींच ले जाएगा उतना ले जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है. I'm hearing 3 people say the same thing. सर्वेंद्र जी भी यही कुछ बोल रहे हैं मोटा मोटा कि जनवरी में टॉप लगेगा. द समर जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था 2800. आप भी वही बोल रहे हो मोटा मोटा कि मतलब एटलीस्ट इंटरमीडिएट टॉप इज इन राइट नाउ. So, I mean, is this? Can I conclude that all of you are broadly in agreement that we are near the top? I have no idea किसने क्या बोला, because I was not around. I just came in here. चिराग जी, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता, बट 20-800 जाना है वो पक्का है. अरे यार क्यों बोलना है ऐसा, होने देना जो होना है. हाँ, बस यानी ये मेरा सुन के कोई मेहरबानी करके ट्रेड मत लेना. हमेशा मैं बोलता हूँ उसका उल्टा ही होता है, वो भी बोलता हूँ. अरे किसी के पास पैसा ही नहीं है, छोड़ना, तू चिंता मत कर. और अमन भाई, मैं तेरे को वो चुप नहीं किया. आपका फील्ड का बात आप करो, वो दूसरा फील्ड में वो किधर घुसता है, उसके लिए मैं बोला अभी आप शांत रहो, ऐसा बोला. आपको चुप नहीं किया था, प्लीज. एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम गोल्ड में नजर आ रहा है. गोल्ड कैन रियली कम डाउन क्वाइट अ बिट, ऑलमोस्ट अबाउट 25-30% गोल्ड, डॉलर गोल्ड नीचे आ सकता है. तो वो डॉलर गोल्ड नीचे आएगा तो बहुत मार्केट के ऊपर, मतलब रिसेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा. दिस मार्केट हैज एडवांस टू मच, इज अ प्रॉब्लम कमिंग इन. बट ये आप लोग बोलते हैं ये लेवल होएगा बाद में घटेगा, ये वोट है. आई अग्री, आई डोंट हैव एनी, बट मुझको मालूम है क्या टाइम में बाजार घटेगा. जरा सी मार्केट सवा कितना घंटा चलता है, 6.25 घंटा चलता है. आपने आज सुबह में बेच दिया 10 बजे और 3 बजे कंटाल के स्क्वायर अप किया, आपको छूट. तो ऐसे एग्जैक्ट टाइम मालूम है मुझे. 3:10 को धाम से निफ्टी 500 पॉइंट डाउन. ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. फिर शाम को डिस्कशन ऑन स्पेसिस, कुछ नहीं, किसी ने का फ्रीक ट्रेड था, ये था. Invariably it will happen on Friday. On Monday, another 500 points gap down. This will be the scenario. पिछवाड़ा संभाल के रखना बस. It is all coming January. Any whether it comes in December, January. See, you are saying January, Sarvendra is saying, Samat is saying, Chirag is saying, I am saying. मैं तो बोलता हूँ कि वो लास्ट जनवरी में आना था, लेकिन आया नहीं अभी तक. But I have a very dirty feeling. This market is not a good market. It's hopelessly rigged, manipulated. आज IT स्टॉक्स बढ़ गए. उधर 1:30 बजे अपने हैंगसेंग में Tencent was down 16%. वो तो टेक स्टॉक है, तो ये IT स्टॉक का क्या होगा. बट इधर बढ़ा दिया. तो funny things are happening in the market. If you cannot understand why it's happening, stay away.
don't venture, don't experiment, because I feel I trade. That's the worst thing you can do in life. Don't trade on your whims and fancy, please. ये वॉल्यूम बढ़ गया रे, वॉल्यूम क्या, इतना वॉल्यूम होता है 10 करोड़ का, डिलीवरी होता है 50 लाख का, वो वॉल्यूम का मतलब ही क्या है? ओवर टू यू अनंत। अनंत बस अभी क्या बोले, अभी कोई वॉल्यूम वॉल्यूम होगा नहीं, बस अभी 2 दिन दे दो, उसके बाद में जो वॉल्यूम बढ़ेगा एक ही साइड में बढ़ेगा। I don't think this market will easily correct 10% from here. That is the minimum correction required. तो ये जो रैली लास्ट वाली जो देखा 18 हाई वॉल्यूम में बहुत फास्ट डिक्लाइन आएगा। इसके सिवाय क्या बोले, वो बाकी क्या है। टुडे एनीवे इज 22nd of December. Today is the longest night in the day. And, from today till 25th, the sun will stop in one place, which is why I said that the market will put in a top on 21st, around 21st of December. लगा दिया, 2 दिन रुक गया, अब तीसरा दिन अभी मंडे से ट्यूसडे से चालू होगा। ट्यूसडे से नया खेल, नया साल, नया गेम, नया सब कुछ, नया साइकिल चालू होगा। ये also finished a 20-year cycle here. बहुत सारा खत्म हुआ है। So and since it fit in perfectly, अब क्या बोलूं और क्या बोले, पैटर्न भी कंप्लीट है। मैं बोलता हूँ अगर ये बाजार नहीं गिरेगा ना, हाँ, तो मई 24 में गवर्नमेंट 100% गिर जाएगा। जाओ लिख के रखो। ये बाजार गिरेगा नहीं गिरेगा, तुम इस मटेरियल 24 में सी 24 लोक अनंत, आप कितना भी बोला, डिड आई आर्ग्यू विथ यू? No argument. I'm actually adding to your this thing. There is no argument actually. What I'm trying to say is, sir, the same situation, सब कुछ जैसे आप बोल रहे हो वही हुआ था 2004 में। हाँ बस। Exact same BJP and won the same states and lost Telangana. उस टाइम आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं था। Everything is the same. We are just repeating the 20-year cycle. और उस टाइम में निफ्टी गिरा था ऑलमोस्ट अबाउट 40%। अब 40% में गिरेगा गारंटी नहीं है, बट इट कैन फॉल आल्सो। 10% इज रिजनेबल। 19,000 तक 6,000 पॉइंट बढ़ा है, 2,000 रीजनेबल है, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। इंडेक्स इज गोइंग टू 23,000। कौन विप्स? अच्छा, ऊपर से लिखा के लाए क्या? हाँ। डिस्क्लेमर ऑफ अनंत एंड एवरीवन, आई कैन चेंज माय व्यू एनी टाइम। नहीं फालतू का बात मत कर यार ऐसा। अरे भगवान वो थोड़ी अपने कि नहीं होएगा ऐसा लफ्ज यूज मत करो यार लाइफ में। Your 20,850 so is 100%, and below that is 20,550. That's it. देखेंगे उसके बाद आप। अरे क्या देखेंगे, क्या बात करता है? नाउ यू आर फ्रस्ट्रेटिंग मी मैन। अभी 1 महीना पहला क्या निफ्टी था? किधर है तुम यार? Keep quiet. See the exposure of the FI 90,000 contract. अरे छोड़ना यार, चल। हाँ अभिषेक बोल। Just to add something about Polycab and what happened in that. So there are a few data points I would like to share. So in the previous quarter, there was a change in inventory, which they have shown negative by an amount of 363 crores negative inventory. और फिर उसके पहले वाले में था 153 crores again negative. तो यहाँ पे ये that is the reason why, तो इन लोगों ने स्टॉकिंग के चक्कर में इन लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाने के लिए उन लोगों ने ये करके रखा है बुक्स के अंदर।
तो अगर 363 crores का इन्वेंटरी पड़ा होगा किसी गोडाउन में, that should be the reason why they had to raid 50 locations and not just one. क्योंकि 50 locations हर जगह पे रहेगा, इन्वेंटरी पड़ा रहेगा, तो यहाँ वहाँ करके छापा मारना पड़ेगा उन लोगों को. तो that is one thing. And on the 12th of December, 2 senior personnel have resigned. Just this month, in the beginning of this month. So there is definitely more cans. I mean, more worms in the can. ये तो अभी जो निकला है वो निकला है, आगे जाके बहुत कुछ निकलने वाला है. नहीं, ये जो इन्वेंट्री का ये आपने बताया ना. हाँ सर. कम ज्यादा वो तो ये असेसमेंट में ही कर लेते. तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स वुड डू इट इन द असेसमेंट. उसके लिए रेट नहीं होता है. कुछ कैश वैश का डीलिंग होगा 110%. और अगेन आई एम रिपीटिंग, unless and until they have super evidence, they will not raid. ये ऐसा नहीं है कि आज मूड आया चलो अभिषेक के बाद रेड डाले, ऐसा नहीं होता है. इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. फाइलें बनती है, कितनी तो अप्रूवल लगता है, डीजी का अप्रूवल लगता है. सो देयर इज 100% समथिंग इज अमिस, and which is not covered in the assessment, which is beyond the law. They have done something. Sir, on the 5th of December, I just read out the designation of the people who have resigned. एक तो प्रेसिडेंट एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया. फिर दूसरा भी सेम डे को ही आया, रेजिग्नेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये दोनों लोगों ने सेम डे पर रिजाइन कर दिया. That is what I think 15 days before. ये कहाँ पढ़ा आपने अभिषेक? अरे बताना था, हम भी शॉर्ट बना के बैठते हैं. नहीं बीएससी का ही है. हाँ हाँ, सबके पास इन्फॉर्मेशन है. हाँ सीए नहीं, आई एम श्योर इट इज. So joking. CXO resignation is always a red flag, especially short notice. क्या अभिषेक, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था क्या? 5 दिसंबर को आया था सर वो रेजिग्नेशन ऑफ 2 पीपल. एक तो था चीफ बिजनेस ऑफिसर और दूसरा था स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट. वो तो दूसरा जॉब अच्छा मिला इसके लिए. उसको हैवेल्स में मिल गया सर जॉब. वो ये मदरसन हैवल सब एक ही बिस्तर के सब. टाइम की बात है. ये फ्रॉड में क्या होता है, आप सौदा तो बना लोगे, फिर you have to wait it out for years together. मैं सत्यम 5-6 साल माथे रखा था. आजकल तो आनंद भाई तो सेकंड्स का चार्ज निकालते हैं. हम ठहरे 10 साल वाले कहाँ पे मिला होगा. आनंद भाई सो गए लगता है. क्या हुआ सर, क्या चाहिए, क्या हुआ? आप तो एक मिनट 10 मिनट देखते हो, हम सालों साल देखते हैं. अब मैं भी तो 20 साल का देख रहा हूँ सर, आपके साथ साथ में. आपने भी तो सिखा दिया मेरे को. परफेक्ट. गुड वन रिप्लाई. एक सिंपल पॉइंट बोलता हूँ, अगर आप 20 साल का चार्ट देखते हो तो 20 साल का कुछ तेजी खत्म होने जैसे दिख रहा है.
मैं एक ही प्रे कर रहा हूँ, मैं पिछले 2021 से एक ही बात बोल रहा हूँ, ये जो पैटर्न है इसका कोई रिजोल्यूशन दे दे फटाफट और खत्म हो जाए। या ऐसे दिस इज लाइक अ मैड रैली व्हिच इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट एट दिस स्टेज। फ्रॉम ऑलमोस्ट फ्रॉम 23 मार्च 2020 मार्च से जो रैली आया है, इसमें कोई बड़ा मीनिंगफुल करेक्शन है ही नहीं। So we need that correction for the market to be healthy. और ये जितना बड़ा हुआ है अभी, इसका रेजोल्यूशन अगर 20 साल का चार्ट का रेजोल्यूशन करने जाए तो बहुत डेंजरस लेवल्स निकलते हैं इसमें। तो मेरा प्रेयर यही है कि ऐसा कुछ जो दिखता है वो ना हो। ये 18,000, 15,000, 12,000, 14,000 जहां भी आए फटाफट आके खत्म करो करेक्शन, वापस तेजी पकड़े तो अपने जान छूटे। सर्वत्र को भी पूछे। आई एग्री विद यू अनंत, एकदम सही बात बोला आपने। ये 16,800 से जो आया है ना, एकदम नॉन स्टॉप रैली विद नो पुल बैक्स करेक्शन। सरप्राइजिंग पार्ट इज किसको प्रॉफिट ही नहीं बुक करना। हाँ, एग्जैक्टली। But most of us are following Sharad and we have his solid stocks. इंडेक्स गिरे तो उनको कुछ होने वाला नहीं है, नीचे गिरेंगे तो और लेना है। ये देखो, ये ऐसे सब ज्ञान देने वाले सब आ जाते हैं। क्या ये तो शरद ने ज्ञान दिया, हम लोग उसमें ही बैठे हैं। अपना मार्केट कितना गिरा, इधर हमारा डेबिट तो हुआ नहीं है। अरे आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो मालिक? Then what will happen to Siemens? Tell me, no? Why should अब गाली निकल रहा है, मैं बाय बेटर शट अप। मैं भी तो वही दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम नॉट गिविंग यू रियल गालीज, आई एम टेलिंग यू इन अनदर वे, डिग्निफाइड वे। यार छोड़ो ना, क्या भाई हम लोग झगड़ा स्पेसेस पे लेट्स कैरी द डेकोरम और never this is the first time. This is the first time. Sharad himself इंडेक्स का बात नहीं करने का। Never argue with the Vips behave and yourself. because of Sharad, we have gone into solid stocks. Vips, I am about to remove you if Yeah, you no, don't. I'll disconnect. I don't want to. चलो चालू करो। या सो ये क्या है? निफ्टी तेल लगाने गया यार, ऊपर जाए नीचे जाए क्या फर्क पड़ता है? अपने को पैसा बनाना है बस, ऊपर जावे नीचे जावे क्या है? मेरे को तो समझ में ही नहीं आता एक ट्रेडर को डायरेक्शन के पीछे क्यों भागना चाहिए। ऊपर जाएगा नीचे, अरे जो साइड जाएगा मारो, ऊपर गया तो चुपचाप बैठे रहो अगर तेजी नहीं करना है। चलिए एनीवे, आपने अभिषेक कहनी है सर इनपुट। नहीं शरद भाई, इस पे मैं खाली इतना ही ऐड करूंगा कि वैल्यू ऐड आप यही कर सकते हो। जैसे अगर ये बाजार किसी कारण से 14,000 12,000 गया तो ये आपके जो अच्छे स्टॉक्स भी है ना, 100 अभी अगर मैं उसको 100 लेता हूँ ना तो मुझे एटलीस्ट वहां नीचे 120 130 शेयर लेने को मिलेंगे। सो टाइमिंग इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट जिसको करनी आती है उसको ही करना चाहिए, जिसको नहीं आती उसको चुपचाप बैठे रहना चाहिए बस। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ सर, इतने साल हो गए, मुझे मालूम है अच्छी कंपनियां कौन सी, अच्छी कंपनी में क्या करने का। इंडेक्स देखना ही नहीं है मुझे। हाँ तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी उस कंपनी के चार्ट में भी कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट टर्म टॉप बन रहा होगा जहां से 20% गिर सकता है, तो मैं उसको जाके 20% नीचे ही लूंगा ना, वही टाइमिंग। तो ठीक है ना, नहीं देखता इंडेक्स, आप कंपनी का नाम बोलोगे, आप मुझे भेजो, मैं आपको कंपनी का चार्ट देख के बोलता हूँ। मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरे को लेना है और यहाँ पे नहीं लेना है, तो अगर मेरा वो The problem नहीं Sharad bhai, let me complete. Yeah, sorry. Let me complete what I was saying, that technicals can add value to people like you, the big players, कि हाँ भाई यहाँ पे निकलो तो 20-25% नीचे मिलेगा। अगर आपको 100 शेयर के बजाय 130 लेने मिले तो आपको प्रॉब्लम है क्या? ये बोलो आप। अगर आपको बताऊं कि हाँ भाई ये आपको 100 के 130 शेयर मिलेंगे तो प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं ना। नहीं, एक बात है और 2-3 बात है। एक तो आपने होता है एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड अलग है। लेना है तो आज ही लेना है, अब भी लेना है। कम ज्यादा आएगा ठीक है, नहीं आया तो
आई कम फ्रॉम देयर कि सस्ता नहीं होगा तो ले लेता हूँ। और दूसरा बात है सर, ये चार्ट वगैरह में आप माहिर हो, आप एक्सपर्ट हो, but unfortunately I really don't understand charts. I don't look at them. Just in my memory I know what would be the high and what would be the low, but that's it. So basically लेते रहो। अरे निफ्टी गिर गया, अरे तेल लगा लिया अपने ले ना। So I am that breed. It works at times and it सर अच्छी बात है, बट आपके you have to also understand our way of thinking. You have to also understand that सब आपके जैसे नहीं है। आपके जैसे कितने हैं? बहुत कम है 100 में से। So we have to also cater to the public where we have to tell them the right ways to do things. वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर अच्छे लोग वो नहीं करेंगे तो जो फुरू लोग जो वॉल्यूम प्रोफाइल देख के स्टॉक लो और ये लो और वो लो, ये जो ज्ञान लोगों को देते हैं, इसमें लोग फंसते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो अरे सही ए भाई भाई मेरे लेने दो ना, ऐसे भी अपना कौन सुन रहा है यार। करेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। एक पब्लिक कौन सुन रहा है? परफेक्ट। नहीं ऐसा नहीं है सर। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट अपना जो 2-4 अच्छा लोग सुनता है वो सुनता है। अगर उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड लाके दिया तो अपने को अच्छा लगता है। बस 2 आदमी की लाइफ में भी वैल्यू ऐड लाके दिया ना जीवन में, और क्या चाहिए? पूरी दुनिया थोड़ा चेंज कर देंगे हम। अपने जीवन का दुख यही है कि अपन मार्केट बॉटम में बाय बोलते हैं और टॉप पे सेल बोलते हैं, और उनको उसका ऑपोजिट सुनना है। क्या करें अभी अपन? पब्लिक को समझ में नहीं आता है, छोड़ दो। या दैट्स आल्सो केस। आई एग्री कि पब्लिक हमेशा रॉन्ग सेंटिमेंट में रहती है। दे आर द मोस्ट एक्साइटेड एट द टॉप एंड द लीस्ट एक्साइटेड एट द बॉटम। तो कोविड के लोगों में जब चिल्ला चिल्ला के बोले तो किसी के पास ना पैसा था, ना ताकत थी, ना मेंटल, ना फिजिकल, ना फाइनेंशियल। और अब जो है, अब लोगों ने पैसा कमा लिया है लेकिन लोगों को उस पैसे से प्यार नहीं है। नोबडी वांट्स टू बुक आउट एंड कीप्स। मैं कहता हूँ चला गया बाजार और 1000 पॉइंट ऊपर, ठीक है, तुम पैसा निकाल के एफडी में भी डालोगे 2 साल के लिए, 7% मिलेगा तो 14% बनेगा। मतलब यहाँ से भी 3-4 हजार पॉइंट निफ्टी के बन जाएंगे, बट क्या निफ्टी यहाँ से 24,000 हो जाएगा? so that probability you have to fix. अरे सत्येंद्र, क्या है को फालतू में no I am just giving a way of thought to तेरे take. को एग्जांपल देता हूँ। 21 अक्टूबर में 18,600 बना, अब बराबर है। हाँ करेक्ट। 2021 अक्टूबर 18,600 का टॉप। आज 27 महीना हो गया। हाँ 21,500 है। हाँ बराबर। मतलब 3,000 पॉइंट बढ़ा। 27 महीने का कैरी फॉरवर्ड 100 रुपया पकड़ो। हाँ तो 2700 पॉइंट हो गए। सर यही चीज मैंने किसी फंड मैनेजर को बोली थी। वो गाली दे रहा था मेरे को। मैंने कहा कहाँ पैसे बने आपके भी तो नहीं बने। दूसरे को गाली देने के पहले ये तो देखो आपके बने क्या? आपके भी नहीं बने। अभी आप कैरी में, अगर मेरा शॉर्ट भी मेरा कैरी है सपोज 18,500 से, तो भी मेरा आज प्लस में 100 पॉइंट से। आपका तो 2700 पॉइंट भर के बैठे हो। तो यही तो देखने का नजरिया है जो आप और हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले। बाकी लोग नहीं देख सकते भाई। 27 महीने में वही 7-8% बने हैं। तो अगर वही पैसा मेरा एफडी में बनता था बिना रिस्क के, तो मैं बाजार में। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मेरा पैसा आराम से 7-8% एफडी में बन रहा है तो मैं बाजार में क्यों रिस्क लूं? जब तक मुझे ये ना समझ में आए कि मेरा 15% बनेगा अगले साल, मुझे नहीं दिखता कि अगले 2 साल में 15% बनेगा, तो आप एफडी में पैसा डाल दो ना। नहीं सर्वेंद्र जी ये पॉइंट्स का बात वो छोड़ देते प्रीमियम का। 21 अक्टूबर और आज 27 महीना हो गया, 10% ब्याज वो किसी भी कंपनी में डिपॉजिट रख देते मिल जाता। लॉस ही है सर, मैं तो कह रहा हूँ। सितंबर 2021 के बाद से लॉन्ग वाले आदमी का लॉस ही हो रहा है। सर एक मिनट जी। तो 27 महीने का ब्याज हुआ तकरीबन 23%। तो 18,600 पे 23% कितना होता है? 4,500 होता है। कहाँ पहुंचा?
अरे तो शरद भाई वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे में वाकई कोई इना मीना डी का XYZ मिड कैप स्टॉक दिखाएगा, बोलेगा मेरा पैसा डबल हो गया। अभी क्या बोलने का उसको कि भाई तूने शेयर कितने लिए थे, तू 1 करोड़ रुपए डाल सकता था क्या उस मिड कैप स्टॉक में? नहीं। तो लेकिन तू 1 करोड़ की FD कर सकता था, तू 10 करोड़ रुपए उस FD उसमें स्टॉक में डाल सकता था? नहीं। लेकिन तू 10 करोड़ की FD कर सकता था SBI में, तेरे नहीं, पैसे बनते थे। अपन ये 10% ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देती है सर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। एक मिनट तो वो 18,600 पे 23% कितना होता है? हाँ तो 4,500 पॉइंट हो गया ना सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ ना, मैं भी कह रहा हूँ लॉन्ग वाले का नेट पैसा नहीं बना है रियल टर्म्स में, खाली उसको खुशी रखनी है दिल में कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा है, ठीक है, पैसा नहीं बना है। FD में भी उतना ही पैसा बन गया है। I'm telling anyone who has got a portfolio of 30-40 stocks, well diversified, कोई बोलेगा नहीं नहीं साहब मैं तो जो है ना, मैं तो खाली XYZ बढ़ता हुआ स्टॉक ही लेके बैठा हूँ, मैं तो बैंकिंग ही लेके बैठा हूँ, मैं तो SBI लेके ही बैठा हूँ और मेरा तो 500 वाला 600 हो गया, वो नहीं चलेगा। मतलब एक ही स्टॉक लेके बैठा है तो फिर वो पोर्टफोलियो नहीं है। Anybody who's got a 30-40 स्टॉक का, मैं यूनिटेक लिया था 1.5 रुपये में, 8 रुपया भाव है। हाँ तो बढ़िया है सर, लेकिन क्या आप यूनिटेक में 100 करोड़ रुपए डाल सकते थे? नहीं। हाँ डाला, 300 करोड़ डाला था, मार्केट कैप 100 करोड़ थी। हाँ फिर ठीक है सर, फिर तो फिर आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, फिर सपने में आपने डाला था पैसा वो। फिर तो क्या है सर, सब लोग वो शोले पिक्चर में एक सुरमा भोपाली का कैरेक्टर था, फेकम फेक करने में होशियार, सब ऐसे ही है यार, यूं पकड़ा ना, यूं डाला ना, यूं किया ना, साला। सर हकीकत यह है कि जिसके पास भी 40-50 स्टॉक हैं, मेरे पास ऐसे एक नहीं कम से कम हजारों केस स्टडी है, पैसे FD रेट के हिसाब से ही बन रहे हैं, कोई किसी का 1-2% ज्यादा, किसी का 1-2% कम। तो इसके लिए थोड़ा आदमी इक्विटी मार्केट में आता है, इक्विटी मार्केट में आदमी आता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को एटलीस्ट 2x करने के लिए, 7 का 14 करने के लिए, 8 का 16 करने के लिए। जब मेरे 7 के 7 ही बन रहे हैं SBI, तो मैं SBI में पैसा डाल के शांति से बैठूंगा, एटलीस्ट मेरे को रात में हेडेक तो नहीं है कि डाउ किधर है ना, गोल्ड किधर है, क्रूड किधर है, इंडिया का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट का क्या हो रहा है, मैं शांति से। स्टॉक मार्केट में लोग क्यों आते हैं? तो बीट सर बीट यहाँ तो मजे के लिए आ रहे हैं सर, यहाँ तो लोग ऐसे मजे के लिए आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। तू सुनेगा क्या? बोलिए। 7,000 रुपया दिया ब्रोकर को, सब ब्रोकर उसका अरबों रुपया हो गया। अब मजे की बात क्या थी, 7,000 रुपया जो ब्रोकर को दिया वो भी मंगेतर से लोन दिया था, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तुम 1 करोड़ लेके आके 10 लाख कमाएगा, वो स्टॉक मार्केट नहीं है। ये मेरे जीवन का सारांश है सर। यही तो सैड पार्ट है हमारे, यही तो सैड है, यही तो सैडनेस लगती है कि लोगों को मना करो, जिन लोग का बाजार में आने का प्रोफाइल नहीं है वो बाजार में घुस रहे हैं। और बताइए घर के, अभी हम आपके स्पेसेस में इसके पहले कोई एक वॉचमैन आया था, बेचारा बाप से उधार लिया, क्रेडिट कार्ड पे उधार लिया और सट्टा कर रहा है ऑप्शन में। तो ये बिकॉज ऑफ दीज फुरू पीपल, मिसगाइडेड पीपल, कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई आदमी चल के आता है, मैं उसको मुंह पे बोलता है भाई तेरे लिए नहीं है, तू जा, तेरे लिए नहीं है मार्केट, तेरे लिए नहीं है, तू चुपचाप बैठ के FD कर या पैसा बचाया है तो BC कर या जो भी कर, तेरे लिए मार्केट नहीं है, या करना है तो म्यूचुअल फंड में SIP कर, खुद मत उतर। बट क्या है, जो लोग जिनको वो 2,000-5,000 का उनका लालच रहता है कि आया है 50,000 लेके 5,000 मैं इसका ले लूं, वो लोग उसको घुसेड़ देते हैं और उसको गलत आदत लगवा देते हैं और वो बेचारा मरते रहता है उसके बाद और गालियां देते रहता है। That is what the market is right now. You talked about SIP. I'm telling you 110% this is going to be a Waterloo for everybody. क्योंकि इतना मार्केट कैप में अगर आप डाल रहे हो, don't think it will grow at this speed always. It will come down to $3 trillion, 100%. जितना भी SIP करो 10-20 साल कुछ नहीं होएगा तुम्हारा, mark my words.
अरे कुछ वैल्यूएशन जैसा 80p 50p में SIP तुम करेगा क्या इधर है? ओके, एनीवे वी हैव राजेश नंदा, प्लीज. नॉट ओके. हाँ बोलिए. नमस्कार सर. मैं पिछले 4 वी कांट हियर यू, वी कांट हियर यू. ओके, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर. नहीं सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है, आपको नहीं आ रहा. हाँ बोलिए. ओके सर, मैं 4-6 महीने से जुड़ा हूँ आप सबसे, और समर्थ भाई से जुड़े हैं अभी, तो अच्छा लग रहा है. अब नींद आ रही है आराम से. जो सर्वेंद्र भाई कह रहे थे, चिराग भाई और अनंत सर ने भी गाइड किया, मतलब सही एटलीस्ट सोने को अच्छा मिल रहा है जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं अभी. तो एक चीज, एक स्टूपिड सा सवाल है. बहुत बार अभी पिछले 4-5 स्पेसेस में सुना कि बाय द डिप और म्यूचुअल फंड. अब मार्केट गिरेगा, राइट? अगर ये 19,000 18,500 तक जाता है तो बाय द डिप वाले खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद प्राइजेस का क्या होगा? मतलब मुझे यही जानना था. उसका बाय कौन करेगा? तो फिर तो फ्री फॉल ही है उसके बाद तो. अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज. ये भूत मरता है पलित जागता है, वो छोड़ो. Lovely. अरे बकरे Sir, लोग आ जाएंगे यार. sir, ये कौन है? Who asked this question? राज. Raj. Very good observation. Actually, this अगर ये point समझो तो you will actually understand what is happening with the market. सब लोग ये सोचता है कि market top पे ना there is somebody who comes and sells. That is why all these people keep watching FI क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. मार्केट का टॉप कभी ऐसा नहीं बनता है कि कोई 30 बार आएगा बोलेगा ये मार्केट टॉप है, यहाँ पे मेरा सेल बनता है. इट नेवर हैपेंस दैट वे. Market puts in a top when the last buyer has bought, right, not when there is a seller who has come to sell. The situation right now, Haji, and market puts in a bottom when the last seller has sold. right. Bottom कभी भी seller लगाता है, top कभी भी buyer लगाता है. It is the mistake that people think that somebody will come. ऐसा कोई 30 बार का है नहीं. And market अभी सब ने जिसको पोजीशन लेना है 99.99% have already bought and taken the position. अब this market has tilted so heavily in terms of the sell that सब वेट कर रहे हैं और बढ़े, मैं बेचता हूँ और प्रॉफिट बुक करता हूँ और बढ़े. एंड क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि वो एक लालच बैठा हुआ है, यार ये और बढ़ सकता है, ये और बढ़ सकता है, ये और बढ़ सकता है, ये नीचे नहीं आएगा. एंड दे आर ओनली satisfying themselves when they say ये मार्केट नीचे नहीं आएगा, वी हैव टू बाय द डिप. बाय द डिप जब आएगा तो किसी के पास पैसा नहीं रहेगा या ना हिम्मत रहेगा, एंड द फॉल विल बी वेरी फास्ट, वेरी शार्प. 2020 में देखा, 2008 में देखा, 2015 में देखा, 2004 में देखा, हर बार यही स्टोरी है, नया कुछ नहीं है इधर. Fantastic observation. There will be no buyers left to buy on the dip. Thank you. Thank you, sir. रवि शर्मा. And let me add to this. जब सब ले चुके होंगे ना, सब 4-5-6 बार लेने के बाद लास्ट में जब आदमी पैनिक करेगा तो वो जो बायर है वही सेलर कन्वर्ट होगा. दैट इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज देयर नेचर. जो बाय करने के बाद जिस दिन वो बायर फाइनली पैनिक कर गया गले तक माल लेने के बाद और उसने फोड़ना शुरू किया, दैट एक्सेंचुएट्स द फॉल ऑन द डाउन साइड. वहां से आती है सेलिंग, वहां से फंसे लोग निकलते हैं और लेवरेज वाले लोग निकलते हैं जिनके लेवरेज खत्म हो चुके होते हैं. ब्रोकर माल फोड़ता है, उनका मार्जिन फंडिंग का माल खत्म हो चुका होता है. बंदा पैनिक कर जाता है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, पैसा तो बाजार में डाल के बैठा है, उसकी बेटी की शादी कल है, उसको तो माल बेचना ही पड़ेगा अगर उसके पास और पैसे नहीं है. So many reasons will come where people will be forced to panic, which is a forced liquidation. उस लिक्विडेशन में ही बॉटम बनेगा. मतलब आखिरी सेलर भी आके बेच के जाएगा जैसे आनंद ने बोला, और वो सारे सेलर ही होंगे. बायर तो दिखेगा नहीं दूर दूर तक, क्योंकि सबको तो बेचना होएगा, क्योंकि सब गले तक माल लेके बैठे हैं. That is how the larger bottom and the larger top takes place. Extremes, मतलब सेंटिमेंट एकदम उल्टा होता है एंड प्राइस एक्शन एकदम उल्टा होता है. मतलब उसमें खाली लोग ले रहे होते हैं लास्ट तक और बॉटम के तरफ लोग खाली बेच रहे होते हैं लास्ट तक, टिल द लास्ट शेयर इज सोल्ड. जब सब खत्म हो जाता है फिर शांति, उसके बाद कोई और सेलर नहीं है, बाजार अपने आप रुक जाता है गिरना. 2-4 दिन में संभलता है, 5-10 दिन के बाद धीमे धीमे चलना शुरू करता है. फिर नए लोग आए तो आए, नहीं जिनके पास पैसे वैसे बचे होते हैं वो आते हैं फिर बाजार में. रवि शर्मा बोलिए.
रवि शर्मा बोलिए। मेजर महत्व मित्तल। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आई एम इन्वेस्टर। मैं नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, जीरो ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे मैं ये सुन रहा हूँ उसमें ऐसा है कि भाई बाजार शॉर्ट टाइम के लिए गिर सकता है। मतलब इन्वेस्टर की तो यही सोच होती है कि लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, पर मेरे कुछ शेयर्स है, मैंने ज़्यादा स्मॉल मिड कैप में डाला हुआ है उसमें, तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर प्रॉफिट में भी है तो एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि मेरे को वापस एंट्री पॉइंट तक एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि क्या बॉटम बनेगा। तो आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है भाई? पोर्टफोलियो सर अभी 30% अराउंड प्लस है। मैंने पूछा पोर्टफोलियो कितना है, हाउ मच इज द अमाउंट? सर अराउंड 1-2 CR का पोर्टफोलियो है। तो बड़ा है। एक दो नाम दो। अडोर, फोनटेक, पूर्वांकरा, अभी नई पोजीशन के लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी में बना रहा हूँ बॉस, और मतलब रोसेल इंडिया, फिर साइमन मार्शल, बेसिकली सर स्मॉल कैप है सारे। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, सीलन एक्सप्लोरेशन, ठीक पेनार ठीक है, इंडस्ट्रीज। समझ गए। यस यस। हाँ मतलब these are all future blue chips. अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, आइरिस बिजनेस सर्विसेज। बढ़िया है, बढ़िया है। टीवीएस श्री चक्रा। ब्लू चिप और क्या है? सर मैंने मोस्टली सारे नाम लिए आपको। हाँ तो अभी आप क्या चाहते हो हमसे? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ सर, अब जैसे मेरे को किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक में पोजीशन बनानी है, तो मेरे को चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दैट इज गुड, तो अभी मतलब रुकना चाहिए, पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, अगर आपको लगता है कि ये आपने अच्छा है सब तरीके से तो ले लो। ओके सर। वो प्रॉब्लम की मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन यार? सर मुझे he is asking, sir, he is asking that he has all the mid caps in his portfolio. We are discussing about Nifty falling down in the coming days, so whether he should book the gains or he should sit quiet. नहीं नहीं, देखिए दो बातें, निफ्टी का ये सब पे असर होता है। निफ्टी सर आपकी आवाज कट गई है पूरी। आवाज क्या कटेगी, मेरा सब कुछ कट गया भाई, वो तेरा नाम सुन के। चल यार मजा कर लो। पूजा पाठ करवा ले, अच्छा रहेगा पोर्टफोलियो के लिए। हेलो। यस सर। अब पूजा पाठ करवा लेना, और पंडित ना मिले तो मुझको बुला लेना, मैं आके पूजा कर लूंगा तेरी। अब बच्चा अच्छे शहर में जा, ये सब कचरा पट्टी में मत जा। चलो, who's next? आनंद कुमार झा।
सर नमस्ते सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे पीरामल फार्मा के ऊपर आपका राय चाहिए था। मैं थोड़ा खरीदा था, मैं स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, कैश में करता हूँ। तो पीरामल फार्मा में 100 में लिया था ना, और आज ही ब्रेकआउट हुआ है, अराउंड 140 पे क्लोज हुआ है। तो उसमें हम नहीं रखो, रहना चाहिए। और बाजार गिरेगा ना, हाँ सर, तो ये और बढ़ेगा, गारंटी। अच्छा सर, वही आज ब्रेकआउट हुआ है, मैं 120 ब्रेकआउट तुम जानो, ये इतना सब आता नहीं है मेरे को कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये वो। अच्छा शेयर है, बस खाओ पियो मजा करो। आपकी लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं तो इसके ऊपर नहीं है। तो फिर छोड़ो ना यार, मस्ती का साधन बना के रखो। हाँ सर, चिल यार चिल, अच्छा शेयर है, घर में रखो, पैसा मिलेगा। ओके अब सर, बेचना ही क्यों है आपको? चलिए, ओके सर, और कुछ? बस नहीं, इसी के बारे में थैंक यू, जानकारी। थैंक यू। ओके, अभी कौन है भाई? अमितल भाई बोलो। अब किशोर वगैरह आप आए थे पहले, बोलिए। किशोर भाई वेगड़ा बोल रहे हो? मंजू शाह बोलो। हेलो सर, मेरा सवाल अनंत सर से है। एक्चुअली अभी मैं आप लोगों का डिस्कशन बहुत क्लोजली सुन रही थी, तो अभी अनंत सर ने ऐसा बोला कि जो टॉप है वो अराउंड जनवरी में होगा, जो कि हिस्टोरिकली हमेशा रहता है जितने भी प्रीवियस फॉल्स हैं, और उन्होंने बोला कि जो बॉटम है वो मई में बनेगा। नाउ कंसिडरिंग कि ये इलेक्शन ईयर है एंड अभी भी जो टर्न अराउंड हुआ मार्केट में, जहाँ जो भी अपने को मोमेंटम मिला वो इसीलिए मिला क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर में गए थे। तो क्योंकि ये इलेक्शन ईयर होगा 24 एंड मे इज व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि दैट टाइम वी विल बी क्लोज टू इलेक्शंस, सो ऐसा मतलब उसका कुछ इम्पैक्ट आने का नहीं सोच रहे हैं हम लोग? हेलो 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 सर, एम आई ऑडिबल? Yeah, yeah, you are audible. Loud Okay, and clear. thanks. So Yeah, Anand, the question is directed to you. हेलो सर, मुझे कह रहे हैं, बीच में ऑडियो चली गई थी। कौन बोल रहा है भाई बीच में? अनएपोलोजेटिक, प्लीज आप प्लीज एपोलॉजी लेके शांत बैठो, मल्टीबैगर भी शांत रहो। अनंत सर बोलिए। The problem here is वॉइस नहीं your आ रही। सर आवाज अरे यार, अभी आ रही है? हाँ सर, अभी बेटर है। ओके, द प्रॉब्लम हियर इज आप लोग सोच रहे हो कि मार्केट गिरने या बढ़ने के लिए आप रीजन ढूंढ सकते हो। जो रीजन आप ढूंढ रहे हो वो पूरा द होल कंट्री, एवरीवन इन द वर्ल्ड नोस रीजंस। अगर रीजन से मार्केट गिरता तो मार्केट को एनालाइज करने का इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और इतने कॉम्प्लेक्स मेथड्स डिवाइस नहीं होते। Markets are irrational. Don't look for an answer on why the market will fall, why the market will not fall, why there cannot be a budget. I mean, an election result which is positive, तो market नहीं गिरेगा। 2003 में भी यही हुआ था। The entire BJP government got so worked up, they made up a new story, India shining and this and that, and then they collapsed miserably by May.
Atal Bihari Vajpayee was expected to win by thumping majority, and they did not even get a simple majority. And Congress formed the government, and Manmohan Singh became the prime minister. So don't go by what you feel. What you feel rarely ever happens in the market, except in a bull market जहाँ पे आपका feel का कोई मतलब नहीं है. तो सब गधा, I mean, they are buying in a wild frenzy, which has happened. It is now past. Now you are at the end of end of the rally. Other thing you have to understand is when you study the cycles, you will understand that 17th of May is the day when the NSE started. So 17th of May actually happens to be the birthday of Nifty. And every 5 years, you can go back and see how the cycles work. 2024, you have the election cycle again. The result will be around May, mid-May, end of May. But I am sticking to the date of 17th May. 16 मई 2019 को देखो, आपको मार्केट में निफ्टी का प्राइस मूवमेंट था 700 पॉइंट्स अप. Go back 4 years, go back to 2014, exactly again 17th May, Nifty had rallied up by 900 points, 1000 points. Go back another 5 years, you get to 2009, 16th May again, you had the first time anywhere in the world you had the upper circuit. Go back 5 years again, you will get 17th of May 2004, India's first lower circuit. Go back 5 years, you will come to 1999, you have to see what happened. You just go back and see what happens every time, whether there is an election or not. There is something about 17th of May, every 5 year cycle, that the market gets into a circuit-like situation. This time, because the market is so high and it is not at a low, I am expecting a bottom to be hit around 17th of May. That is the explanation, lamba choda explanation. If it makes sense, accept it. If it doesn't make sense, throw it into the No, sir. It really does make sense. I'm saying but my only thing was that irrespective of what the result is going to be, whether everybody expects BJP to come and whether BJP actually wins or it doesn't, that is a separate story, and that we would get to know only by the mid of May, around 17th of May, what you are saying, or end of May. The only humble submission that I was trying to make here was that since this is going to be a election year, so is it possible that that can actually skew the markets or skew the markets to the positivity? That was only what my no, you can take that stand. I have absolutely not a problem. See, I am no god. I am just trying to explain what I am seeing. So, can the market be up? Of course, it can be. If the market goes up, I'll be the first person to jump into the bull side. See, in October and November this year, when everybody was talking bearish, I said, no, this is not the bottom. This is not the time that it will go down. You have to buy up. I don't know if you were there earlier when in November first week I was saying just buy this market. It's going up. And I had given this target 20,500 to 21,000. So वही हुआ है. So the issue is आगे क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल है. सही बात है. बोलना बहुत दूर है. Right now, if you ask me right now, अभी क्या लग रहा है? अभी लग रहा है market more or less is at the top. We are looking at minimum correction of about 1,500 to 2,000 points at the minimum. Post that क्या होगा, जैसे होगा तब देखते हैं ना. आज देख के कोई मतलब नहीं. See, today when we started these spaces, Dow was about 250 points up. Right. I said it will come down and close in the minus. It has come down to it's just holding about 15 points right now. Right, sir. So what you can do, trading and long-term forecasting are two different things. Correct, sir. You can discuss what it will do on a shorter time, maybe a week, 10 days, 20 days. Okay, a month. Beyond that, technical analysis sometimes becomes difficult. And many things will happen between now and May. देखते हैं क्या होगा. जल्दी क्या. सही बात है सर. I think we should cross the bridges when we reach them. So I think you entertain. What do you expect? PE to be 200 or what? It's already at 60, 70, 80. So
ये बीजेपी जीतेगा तो 150 हो जाएगा पी। सर मिठाई भेजो, डाउ माइनस में आ गया 24 पॉइंट। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये वेरी सी मैडम। हाँ जी सर। नहीं सर, Everybody is a bull. Everybody by birth is a bull. Right from the day a baby is born. नहीं सर, आप लोगों को तो इतना एक्सपीरियंस है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लर्न, आई एम अ नोविस एक्चुअली। मैं सिर्फ लर्न करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इफ यू आस्क मी फॉर माय व्यू, इवन आई फील दैट द मार्केट हैज स्टॉप्ड बिकॉज़ you know the kind of volumes that are getting in, and the way the volumes are getting rigged in the market, it's becoming very obvious that you know we've almost reached the top. Even I'm of the same view, but मेरा सिर्फ एक यही था कि sorry, yes sir. One second, see, don't get into all this. The markets are rigged, markets are bad, markets में algo चलता है इसलिए नहीं मिलता है. I'm still maintaining, market में कोई problem नहीं है. Right sir. अगर buyer है तो सामने एक counterparty seller भी है. Absolutely. The market is always balanced. Don't try to see. अगर किसी को pattern समझ में नहीं आ रहा है, then they have to rethink to study, redo the studies. I'm saying there is nothing wrong with the pattern. Come and sit with me. I will show you. The pattern is perfectly fine. Sometimes the mistake which happens is we presume something. The market is something a little different. So the markets are not wrong. The markets are always right. No, sir, the markets are right, but the kind of frenzy and euphoria that is happening in the market, मतलब आप ऐसे अरे ही but stock how is देख रहे it थे। harming you, madam? No, sir, it's not harming me. It's not. अरे see, look, a very simple thing I follow is Yes, sir. every day morning Mm-hmm. I think, where will I make my money? Absolutely, sir. I don't care क्या होता है, आपको प्रॉब्लम है नहीं है, आप लेते हैं बेचते हैं, आई एम नॉट वरीड. आई True, sir. वांट टू मेक अ बक. Absolutely, sir. लॉस हो जाता है तो इतना कॉल पुट बेच देता हूँ. एंड ऑफ द डे आई वांट मनी. True, This sir. is Absolutely. a trading, and if you ever meet me in person, Sure, sir. you will realize I am a dumb person. नहीं सर, मैं तो आपको अभी सुन रही हूँ कुछ दिनों से सर. हाँ. So, आपको सुन रही हूँ सर, आपकी स्पेसेस ज्वाइन कर रही हूँ कुछ दिनों से, so I can I will totally disagree with you on this point. नहीं ऐसे नहीं, मैं मतलब अरे मुझे क्या करना है यार, करने दो, मरने दो सबको. सही कह रहे हैं सर. एक और बात बोलूं, everyone thinks that this is a frenzy, बहुत buying हो रहा है, ये हो रहा है. शायद maybe there is only Sarvendra and Sharad bhai here who have been around in that time. What you are seeing, the frenzy right now, is actually nothing. We have seen 100 times worse than this during Harshad's time. Oh yeah, of course. रिस्क है तो इश्क है में बहुत 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 ज्यादा फ्रेंजी था. ये फ्रेंजी कुछ नहीं है मैडम उसके सामने. नहीं सर, सही कह रहे हैं. So don't call this a frenzy. It is not that kind of a frenzy. No, but आनंद भाई वो तो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उस समय लोग डायरेक्टली उतरते थे. अब तो सब सारा पैसा तो म्यूचुअल फंड में चला गया है. करेक्ट, बस मालिक कितना है. करेक्ट. तो इसलिए वो दिखता नहीं है, क्योंकि नाउ दोस व्हाटएवर 120 150 200 जो भी फंड मैनेजर्स हैं, सारा पैसा वहां कंसंट्रेट है. तो वो तो आके बाहर डांस नहीं करते ना लोगों के जैसे. तो वो है. तो इसलिए वो इमोशन इज मिसिंग है somehow. I also agree that entire frenzy का emotion is missing, but the only reason I can see is that possibly people are going through mutual funds and day to day excitement से कटे हुए हैं. क्योंकि रोज तो एनएवी तो देखते नहीं है, या देखते भी होंगे तो एनएवी इंट्राडे तो दिखती नहीं है. शाम को देखते हैं तो दिन भर का एक्साइटमेंट नहीं है जो पहले हुआ करता था. पूरे दिन एक्साइटमेंट वो नहीं है अब. नहीं सर, बट फ्रेंजी व्हाट आई मेंट वाज कि जो स्टॉक्स अभी 1 महीना 2 महीना पहले इफ दे वर एट आई मीन नाउ दे आर एट 10x विद इन अ मंथ, विद इन 2 months. तो सर ऐसे वाले इसको फ्रेंजी बोल रहे हैं बेसिकली. अदरवाइज we understand what you are saying. Yes. And it's right also. But ठीक है ना, आप बम्बई से हो क्या? नहीं सर, मैं दिल्ली से हूँ. अच्छा, तो आप यहाँ धारावी एक स्लम एरिया है. जी, मैं रही हूँ बॉम्बे सर, मुझे मालूम.
हाँ तो अभी धारावी में क्या होता है अपने को क्या लेना देना, छोड़ो। ये सही बात है सर। आपको एक फ्रेंजी का एग्जांपल देता हूँ। जी सर। निफ्टी ऑन 21st of November 2003 was trading at 1511, right, and on 9th of January, okay, we are talking about 21st of November to 9th of January. You are right sir, only talking 45 days. right sir, 45 दिन में ये टॉप लगाया था 1980, sorry 2020. Okay, so that was a 55% rally in 45 days. उसके कंपैरिजन में वही 45 दिन में इधर हमने सिर्फ 10% बढ़ाया मैडम, इतना नहीं बढ़ाया। सही कह रहे हैं सर। You have not seen the frenzies in terms of the growth that Nifty has shown earlier. ये सबको बेवकूफ बना रहा है. This is typically what happens is what we call in elite wave terms, it looks like it is running away, but in real terms, if you take the percentage terms, it is not. It is a very small rally. It is a very small thing. Only the absolute numbers बड़े दिख रहे हैं आपको और कुछ नहीं. So when you compare the percentage growth, it is not so bad. Which is why I am saying it is slowing down. Market is slowing down. Market is slowing down. It is not rallying. Right. Well taken, sir. Well understood. Thank you so much, sir. Thanks a lot. बोलो कौन आता है? बोलो। हेलो सर, नमस्ते सर। मेरे को टाटा स्टील के बारे में जानना था सर। इनमें इन्वेस्ट किया था। अच्छा है। ओके बोलो भाई। थैंक यू। हाँ मल्टी बुल मल्टीप्लेगर बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो ना भाई, बोलो बोलो। अरे बोलो भाई। बुलेन बेर बोलिए। छोड़ दिया स्पेस। मल्टी बैगर। नहीं बोलना है, चलो निकालता हूँ मल्टीप्लेगर से। और विक्रम और विकास राज बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं आउट। हाँ बोलिए सनम और पासरी सर। सर कैसे सर? बस बोलिए। अच्छा सर, मैं जानना चाहता था, मान लो एक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मान लो प्रमोटर लोगों का कोई मतलब कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ हो जाता है, कोई मतलब उसके बारे में बुरी न्यूज़ आ जाती है, तो सर हमें उस कंपनी में मतलब किस व्यू में देखना चाहिए? मतलब वो कंपनी तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन प्रमोटर ने मान लो उसके पर्सनल उसके पे कोई केस हो गया, देखनी ही नहीं चाहिए। वो भी नहीं देखनी चाहिए सर? नहीं। ओके ओके। मतलब मतलब वो આપણે अच्छे प्रमोटर की कमी है क्या इंडिया में? नहीं सर, कमी तो नहीं है। तो फिर अच्छा सर, तो कचरा पट्टी में क्यों जाने का झगड़े में? छोड़ो ना भाई। समझ गया सर। आपका पैसा बहुत कीमती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा और सर एम्बेसी रीट के बारे में जानना सर, उसका आपका मतलब एम्बेसी रीट का फंडामेंटली आपको कैसा लगता है स्टॉक? नहीं रीट है फंडामेंटली क्या, प्रमोटर अच्छा है बस। एम्बेसी और क्या? ओके ओके। वधघट वो थोड़ी होती है। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू।
बोलिए। और आज मेरे को ये जान हाँ थैंक यू। मेरे को ये जानना था स्टॉक LIC के बारे में, ठीक है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब अच्छा स्टॉक है LIC? आपने लिया है कि लेना है? मैंने थोड़ा लिया है एक्चुअली। तो भूल जाओ ना, और कोई ढूंढो अभी। ओके ओके। अगर आपको शेयर लेना है ना, कभी भी ध्यान में रखना, इंडस्ट्रियल्स का ही लेने का शेयर्स, उसमें ही बढ़त होती है, ये सब में बढ़त नहीं होती है। ओके मतलब LIC में इतना अच्छा नहीं है, आप वही आप बोल रहे हैं ना? अरे यार, आई डिड नॉट से अच्छा नहीं है। मतलब ग्रोथ नहीं होगा ऐसा? तुम समझते ही नहीं यार, मैं LIC का नहीं, पूरा बैंकिंग सेक्टर का बोलता हूँ, सबका ओके बोलता हूँ कि आपका अच्छा पैसा नहीं बनेगा। हेलो हेलो, चल Raj, you are not there. Yeah, I'm there. Yeah. Okay, Yeah, thank yeah, you. got it, yeah. Yeah. हेलो शरद सर, गुड हाँ बोलो भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर कैस्ट्रॉल में एंट्री बन रही है अभी 162 पे? बनती है ना, 135 में भी बनेगी, 200 में भी बनेगी। क्या सवाल है यार। बस ठीक है सर, थैंक यू, समझ गया मैं, थैंक यू। स्टॉक मार्केट बोलो। सर मेरा सब स्पीकर से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक तो है कि आप लोग में से कोई मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है, और दूसरा नहीं। ओके और बहुत रात हो गया भाई, और कुछ पूछ। अगर सर आप 20 ईयर ओल्ड कोई ट्रेडर को क्या एडवाइस दोगे कि कुछ गलतियां कम करें, या मतलब कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या बता सकते, कोई एडवाइस दे सकते हो आप यंग ट्रेडर को जो भी स्टार्ट ही कर रहा है? यहाँ 30 साल के पहले एंट्री नहीं है। ओके ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। एसके सर एल्कम लैब 7,000 हो जाएगा? नहीं होगा। ओके सर। और सर एबर्ट कितना हो जाएगा? तू नेक्स्ट पेज में पूछना। मैं एस्ट्रोलॉजर को पूछ के बोलता हूँ तेरे को कितना हो जाएगा। क्या बेहुदा सवाल है यार, कितना हो जाएगा। मैं भगवान वो थोड़ी है यार। अच्छा है, बस उतना मालूम है। अच्छा, एल्कम लैब अच्छा है सर? अच्छा है। ठीक है, डन, थैंक यू। यस। ट्रेंड फॉलोअर, आपको क्वेश्चन पूछिए। क्यों मांगते हो यार स्पीकर, पूछना नहीं है तो। सॉफ्ट है। भगवान, चलिए। और ट्रेंड भाई नहीं बोलेगा, रिमूव। हाँ बोल भाई, बोल। सर मैं थोड़ा यही जानना चाहता था, मतलब आपके हिसाब से ये ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज कौन सी है? मतलब जैसे बैंकिंग आपने बोला नहीं इतनी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री, तो मेन कौन सी रहती है सर जिसमें मल्टीबैगर्स निकल के आते हैं मोस्टली? नहीं, मल्टीबैगर्स का मेरे को नहीं मालूम। नहीं सर, मतलब मेरा जानना चाहता टू। वो कंसेप्ट ही बकवास है यार, मल्टीबैगर। ओके तो सर ग्रोथ इंडस्ट्री कौन सी मानी जाती है जनरली?
जो कचरा पट्टी है वो ले लो तो ग्रो हो जाती है। यूनिटेक 1 रुपए का 10 रुपया हो गया। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री बोला सर आपने? अरे यार शर्म जी, आप इंडस्ट्रियल्स में देखिए, एंड शरद सर की प्रोफाइल पे भी उनने मेंशन कर रखी कंपनीज। अच्छा अच्छा, ठीक है यश जी, थैंक यू। हाँ भाई चलो कमलेश पहाड़िया। Sharad, one question on Marks and Pharma. No, out of 11. Thank you. मयूर जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। मयूर भाई पूछिए ना। चलिए, और 4-5 रिक्वेस्ट है बस, अभी थक गए यार। नरेंद्र, लास्ट वर्ड्स। मैं तो यही बोलूंगा, थोड़ा अलर्ट, सब लोग अलर्ट रहें। जनवरी इज अ बिग टर्निंग साइकिल ऑफ मोस्ट ऑफ द इवन ईयर्स, तो थोड़ा संभल के रहें, थोड़ा प्रॉफिट्स बुक करके रहें। मार्केट काफी ओवरबॉट है। बाकी बड़ा डिक्लाइन या बड़ा कुछ ट्रेड जो बैठेगा वो 20,100 के नीचे ही बैठेगा, बट इन द मीन टाइम ऊपर में अलर्ट रहे, प्रॉफिट्स थोड़ा नेक्स्ट 10-15 दिन में बुक करें, और होपफुली फर्स्ट वीक सेकंड वीक ऑफ जनवरी में अलर्ट रहें। मार्केट्स यूजुअली आर टॉपिंग आउट इन दैट टाइम पीरियड, तो वहां पे अगर बेचा रहेगा तो अच्छा पैसा बनेगा, नीचे में दोबारा लेने के लिए मिलेगा। और किसी को बोलना है कुछ? सर, हमारा राजा एनर्जी कैसा लगता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? एनर्जी? हमारा राजा एनर्जी मालूम नहीं, बैटरी है। हाँ, हमारा राजा बैटरी, उसका नाम चेंज हो गया, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया। और क्या भाव है अभी? 760 के आसपास है। अच्छा है। 4-5 साल में 900 हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा नहीं है 900 तो। वो अभी मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा, ओके भैया। हाँ सर, हेलो, नमस्ते। हाँ सर, सर आपने जैसे एक बार मेरे स्पीच में आपने आपसे पूछा था कि वो उसके बारे में सर, एबीबी, सीमेंस और एलएनटी, वो सब आपने बोला था कि जनवरी फरवरी के बाद लेना था, तो वो ऐसे वो तो तब उसके बाद ले सकता क्या सर, फरवरी के बाद? ले लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? एक है ना वो टाटा ग्रुप का TRENT, ट्रेंट और टाइटन। अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, बोलो भाई। गुल्लू, आपका क्वेश्चन पूछिए गुल्लू। ओके, अयान शेख। चलो, nobody wants to answer. अरे sorry, nobody wants to ask. Friends, thanks for joining. Have a wonderful weekend and season's greetings. Merry Christmas. Thank you. Bye. Thank you so much, sir. Namaskar, And good night, sir.